السلام علیکم۔ نکھاری آن لائن میگزین میں خوش آمدید۔ ایک تھی مشال، قسط نمبر 3، 3 رائٹر۔ شمائلہ جنونی ہو گئی تھی۔ آس پاس سے اپنی رقیب محسوس ہونے لگی تھی۔ شمائلہ نے صرف جیتنا سیکھا تھا، اس لیے وہ ہر جائز و ناجائز کام کر جاتی تھی، کیونکہ اسے ہار بالکل بھی قبول نہیں تھی۔ حالانکہ ہار بھی جیت کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے۔ جس کے دل میں خوف خدا ختم ہو جائے تو پھر اس انسان کو کوئی بھی گناہ کرتے ہوئے کوئی ڈر یا پھر کوئی خوف محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اس دنیا میں بڑی شان سے، بڑے ٹھاٹھ سے جینا چاہتا ہے۔ وہ بھول جاتا ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک اور جہاں بھی ہے، جہاں انسانوں کے اچھے برے سبھی اعمال کا حساب کتاب ہوگا۔ لیکن شمائلہ انتقام لینے کی آگ میں اس قدر اندھی ہو گئی تھی کہ اس کے اندر خوف خدا ہی نہ رہا تھا۔ اپنی خوشیوں کے لیے وہ ایک انسان کی جان لینے پر آمادہ ہو گئی تھی۔ وہ موقع کی تلاش میں تھی کہ کب موقع ملے اور وہ آسفا کو دوسرے جہان بھیج دے، اور بالآخر اسے یہ موقع مل ہی گیا۔ آج آسفا کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی تو مثال نے اسے دوائی دے کر کمرے میں سلا دیا۔ اب وہ اپنے کمرے میں نماز ظہر ادا کر رہی تھی۔ شمائلہ نے یہ سب کرنے سے پہلے تنزیل کے موبائل پر میسج چھوڑ دیا تھا کہ آنٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ایک اہم میٹنگ کی وجہ سے تنزیل وہ میسج وقت پر نہ پڑھ سکا تھا، جو شمائلہ کے لیے اور زیادہ بہتر ثابت ہوا تھا، کیونکہ اگر وہ وقت پر میسج پڑھتا تو اسی وقت ماں کے پاس چلا آتا۔ شمائلہ کے پاس یہ اچھا موقع تھا آسفا کو دوسرے جہان رخصت کرنے کا۔ مثال اپنے کمرے میں نماز ظہر ادا کرنے کے بعد ہاتھ اٹھائے دعا مانگ رہی تھی، جس وقت شمائلہ آسفا کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ شمائلہ تبھی قدموں چلتی ہوئی آسفا کے سرہانے آن کھڑی ہوئی۔ آسفا بلینکٹ اوڑھے گہری نیند میں تھی اور انہیں یوں سوتا ہوا دیکھ کر شمائلہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ مجھے معاف کر دینا آنٹی، یہ سب میں اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ آپ نے مجھے مجبور کر دیا ہے یہ سب کرنے پر، کیونکہ آپ میرے اور تنزیل کے درمیان فاصلے پیدا کرنے کی کوشش کر رہی تھیں، اور میں اپنے اور تنزیل کے درمیان آنے والی ہر رکاوٹ کو ہی جڑ سے اکھاڑ پھینکوں گی۔ دنیا کی کوئی بھی طاقت مجھے تنزیل سے جدا نہیں کر سکتی۔ شمائلہ سارتپا گھمنڈ میں ڈوبی کہہ رہی تھی، تنزیل میری محبت اور میرا جنون ہے، اور اس کی خاطر میں کسی کو بھی مار سکتی ہوں، چاہے پھر وہ تنزیل کی پیاری ماں ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی آنکھوں میں شفقت صاف جھلک رہی تھی۔ شمائلہ ایک جان لینے کے لیے جا رہی تھی، لیکن اسے کوئی ڈر کوئی خوف نہ تھا۔ گڈ بائے آنٹی، یہ کہتے شمائلہ نے پاس رکھا تکیہ اٹھایا اور گہری نیند میں سوئی آسفا کے منہ پر رکھ کر دباؤ ڈالتی ان کا سانس روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ اچانک سانس بند ہونے پر آسفا ہاتھ پاؤں مارنے لگی۔ انہیں یوں تڑپتے دیکھ کر شمائلہ کے جلتے دل کو جیسے سکون سا مل رہا تھا۔ وہ کہے لگا رہی تھی۔ آسفا خود کو بچانے کے لیے ایڑیاں رگڑ رہی تھی، مگر شمائلہ تو جیسے حیوان بن گئی تھی۔ وہ پوری قوت لگا کر ان کی چلتی سانسوں کو بند کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس جوان خون کے آگے وہ بوڑھی عورت زیادہ دیر تک مزاحمت نہ کر سکی۔ اب بالآخر ہاتھ پاؤں مارتی وہ ٹھنڈی ہو گئی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ شمائلہ نے تکیے پر سے اپنا ہاتھ ہٹایا اور تکیہ اٹھا کر دیکھا تو آسفا کی روح پرواز کر چکی تھی۔ شمائلہ کہا لگا کر ہنس پڑی۔ ہاں، ایک قاتلہ ہونے پر وہ خوشی سے کہے لگا رہی تھی۔ خالہ جانی، اٹھ جائے، آپ کی دوائی کا وقت۔ دروازہ کھول کر اندر آتی مثال سامنے کا منظر دیکھ کر باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ اس نے شمائلہ کو کہکے لگاتے دیکھا تو سامنے اپنی خالہ جانی کی کھلی آنکھیں اور بے جان وجود دیکھ کر وہ چیخی پڑی تھی۔ خالہ جانی! ہاتھ میں پکڑا پانی کا گلاس اور ٹرے چھوٹ کر زمین بوس ہو گئے تھے۔ وہ بھاگ کر اپنی خالہ کے بے جان وجود کے پاس آتی انہیں ہلانے جلانے لگی، مگر حرکت نہ دارت۔ شمائلہ کی چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا تھا۔ یہ تم نے کیا کر دیا؟ تم نے خالہ جانی کو مار دیا؟ خالہ جانی اٹھ جائیں پلیز۔ مثال نے ان کی نبض چیک کی تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تھم چکی تھی۔ خالہ جانی! مثال نے ایک دل سوز چیخ ماری اور ان کے سینے پر سر رکھ کے بلک بلک کر رو دی۔ شمائلہ تھر تھر کانپنے لگی۔ مثال نے اسے آسفا کا قتل ہوتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ خوف زدہ تھی کہ کہیں مثال تنزیل کو کچھ نہ بتا دے۔ تم قاتل ہو، تم نے خالہ جانی کو مار ڈالا۔ آسفا کے سینے سے سر اٹھائے وہ شمائلہ کو دیکھ کر چیخ اٹھی۔ میں سب کو بتاؤں گی تم قاتل ہو۔ مثال اپنے آنسو صاف کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا ارادہ کال کر کے تنزیل کو یہ سب بتانا تھا، مگر شمائلہ بھاگ کر اس کے سامنے آتی اس کے فرار کی کوشش ناکام بنا گئی۔ اس نے پاس رکھی فروٹ باسکٹ سے چھری اٹھائی۔ وہ جنونی ہو رہی تھی۔ مثال کو دیوار سے لگاتی ہاتھ میں پکڑی چھری اس کے گلے پر رکھ دی۔ کیا کیا دیکھا ہے تم نے؟ بتاؤ۔ شمائلہ غرائی۔ میں نے تمہیں دیکھا تھا کہ تم نے خالہ جانی کے منہ پر تکیہ رکھ کر ان کا سانس روکا ہوا تھا۔ ان کی موت سانس رکنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ تم قاتل ہو، میں تنزیل کو بتاؤں گی۔ مثال روتے ہوئے بولی، جس پر شمائلہ نے ایک زوردار تھپڑ جڑ دیا۔ تھپڑ اتنی زوردار تھا کہ مثال کا سر ایک طرف کو جھٹکا کھا گیا۔ کئی سیکنڈز تک تو وہ یوں ہی سر جھکائے کھڑی تکلیف کو محسوس کرتی رہی، پھر آہستہ آہستہ چہرہ سیدھا کر کے نظر اٹھائی۔
اگر میں اس بڈھی کو مار سکتی ہوں تو تمہیں بھی مار سکتی ہوں، اور ابھی اور اسی وقت۔ شمائرہ چھری کی نوک اس کے گال پر پھیرتے ہوئے زہرخند لہجے میں بولی، تمہاری خالہ جان ویسے بھی تمہاری وجہ سے مری ہے، تم تھی اس کی وجہ۔ اگر تم یہاں پر نہ آتے تو یہ بڑھیا آج زندہ ہوتی۔ شمائلہ چھری سے آصفہ کے بے جان وجود کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، یہ تمہاری وجہ سے مری ہے، سنا تم نے؟ شمائلہ پوری حلق سے چیخی تھی، مثال کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ وہ کانپتے ہونٹوں سے بولی، تم نے بہت برا کیا ہے شمائلہ، تم نے اس انسان کی اس کی جنت چھینی ہے جو تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ سوچو جب اسے پتہ چلے گا اس بارے میں، تب اس کی نفرت کا کیا مقام ہوگا جس کی محبت میں تم نے خالہ جانی کو مار ڈالا۔ جب وہی شخص تم سے نفرت کرنے لگے گا تو کیسا محسوس کرو گی تم؟ تم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے شمائلہ، ایک زندہ انسان کو مار دیا ہے تم نے۔ ایک لمحے کے لیے شمائلہ کانپ سی گئی تھی، کچھ تو تھا کہ اس کے الفاظوں میں، لیکن پھر وہ جلدی ہی خود کو سفاکیت کے خول میں واپس بند کر گئی تھی۔ تنزیل مجھ سے تب نفرت کرے گا نا جب اسے کوئی بتائے گا۔ کیا تم بتاؤ گی تنزیل کو؟ ہاں بولو، ہمت ہے تمہیں یہ سب بتانے کی؟ یہ کہہ کر وہ کہکہا لگا کر ہنس دی۔ تنزیل تمہاری بات کا کبھی بھی یقین نہیں کرے گا مثال بی بی، اور ایسی کوشش کرنا بھی مت۔ تم ابھی مجھے اچھی طرح سے جانتی نہیں ہو۔ شمائلہ اس کے کندھے پر نظر نہ آنے والی گرد صاف کرتے ہوئے بولے، میں سانپ سے بھی زیادہ خطرناک اور زہریلی ہوں، اگر ایک بار ٹس لیا نا تو پوری زندگی اس تکلیف کو سہتی رہو گی تم۔ ایک کہاوت ہے کہ سانپ کے ڈسے جانے کا پھر بھی علاج ہے، لیکن اگر انسان ڈس لے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اور میرے زہر کا بھی سمجھو کوئی علاج نہیں ہے مثال بی بی۔ میں اپنا یہ گناہ تمہارے سر پر بھی تھوپ سکتی ہوں، اس لیے اگر چاہتی ہو کہ تمہارا مقام اور تمہاری یہ معصومیت تنزیل کی نگاہوں میں بنی رہے تو اپنے ان ہونٹوں کو سل دو، ورنہ پھر شمائلہ سیدی جو کرنے پر آئی نا تو تباہ برباد کر کے رکھ دے گی تمہیں۔ سنا تم نے؟ شمائلہ چیخی، مثال سہم کر دیوار سے جا لگی۔ اب ماتم مناؤ اپنی اس بے جان خالہ جانی کے ساتھ۔ نفرت سے کہتی شمائلہ چھری مثال کے پاؤں کے پاس پھینکتی کمرے سے نکل گئی۔ پیچھے کھڑی مثال بھیسو دیوار سے لگتی نیچے بیٹھتی پھوٹ پھوٹ کر رو دیتی۔ آج اس نے اپنے ماں جیسی خالہ جانی کو کھو دیا تھا۔ شمائلہ نے جب دیکھا کہ تنزیل کے آفس سے گھر آنے کا وقت ہو چکا ہے تو وہ اپنے ڈرامے پر عمل کرنا شروع ہو گئی۔ جو ہی تنزیل گھر میں داخل ہوا شمائلہ دھاڑی مار مار کر رونے لگی۔ اسے یوں روتے دیکھ کر تنزیل پریشان ہوتا ہے اس کے پاس بھاگ کر آیا۔ شمائلہ میری جان کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ تو سب ٹھیک ہے؟ تنزیل وہ آنٹی، شمائلہ اسے پکارتی اس کے سینے سے لگتی روتے ہوئے بولی، کیا ہوا ہے ماما کو؟ تنزیل آنٹی اس دنیا میں نہیں رہی۔ کیا کیا کہہ رہی ہو تم؟ تنزیل کو لگا اس کے پاؤں سے زمین اور سر سے آسمان کو کھینچ لیا گیا ہو۔ میں نے کہا کیا کہہ رہی ہو تم؟ اس پر تنزیل ذرا اونچی آواز میں سے جھنجھوڑتے ہوئے چلایا تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں تنزیل، آنٹی کی طبیعت صبح سے ہی کچھ خراب تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ ان کا سانس بند ہو رہا ہے۔ میں نے تمہیں میسج بھی کیا تھا لیکن تم نے مجھے کوئی رپلائی ہی نہیں دیا۔ میں تھوڑی دیر بعد جب میں ان کے کمرے میں گئی تو وہ شمائلہ جان بوجھ کر بات ضروری چھوڑ کر منہ پر ہاتھ رکھے ایک بار پھر سے رونا سٹارٹ ہو گئی۔ تنزیل سے خود سے دور کرتا تیزی سے اپنی ماں کی طرف بھاگا۔ پیچھے کھڑی شمائلہ نے پلکوں پر ٹھہرا آنسو انگلیوں سے چنا اور ہوا میں اچھالتے کہکہا لگا دیا، اسے کہتے ہیں بہترین پلاننگ۔ سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی، میرا یہ راز اب راز ہی رہ جائے گا۔ مگر وہ یہ شاید بھول گئی تھی کہ مثال کے علاوہ بھی ایک اور گواہ موجود تھا جو اوپر عرش پر براجمان تھا، جس کی آنکھ سے کوئی منظر اوجھل نہیں۔ وہ حاضر بھی ہے، ناصر بھی ہے، وہ ظاہر بھی ہے اور منظر بھی۔ وہ گواہ جس کو رشوت دینے کوئی نہیں دے سکتا، وہ عرش کا مالک جو اوپر سے سب دیکھ رہا تھا، مگر ابھی اس نے شمائلہ کی رسی ڈھیلی کر رکھی تھی، اور جب اس عرش کے مالک نے اس کی رسی کھینچی تو اسے دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کے عذاب سے نہیں بچا پائے گی۔ شمائلہ نے یہ سارا ڈرامہ وسیع کے توسط سے رچایا تھا اور کامیاب بھی رہی تھی، کیونکہ آصفہ نے شمائلہ کو سختی سے وارن کر رکھا تھا کہ دوبارہ یہ لڑکا ان کے گھر میں نہ آئے، اور بھلا آصفہ کے ہوتے ہوئے وسیع کیسے آ سکتا تھا؟ اس لیے اس نے یہ ساری پلاننگ کی تاکہ وہ مثال کے قریب پہنچ سکے، اور وہ کامیاب بھی رہا تھا۔ شمائلہ نے اسے کال کر کے یہ خوشخبری سنائی اور آصفہ کی ڈیتھ کا سن کر وسیع کو بے تحاشا خوشی ہوئی۔ اب اسے مثال کے قریب جانے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا تھا۔ شمائلہ تنزیل کے ساتھ اس کے غم میں یوں شانہ بشانہ کھڑی تھی جیسے اس جیسا کوئی معصوم ہی نہیں اس دنیا میں۔ ماں کی اچانک موت سے تنزیل بالکل ٹوٹ سا گیا تھا۔ اسے یوں تکلیف میں دیکھ کر مثال کو بہت تکلیف ہوتی تھی۔ وہ سوچتی کہ کاش مجھ سے سب کچھ بتا سکتی کہ وہ جس عورت سے اتنی شدید محبت کرتا ہے اسے نہیں اس سے اس کی جنت کو چھینا ہے، لیکن وہ ہر بار چپ ساتھ دیتی، اس ڈر سے کہ کہیں شمائلہ اپنا الزام اس پر نہ تھوپ دے، اور اسی چپ کی وجہ سے اس کے ساتھ شمائلہ اور وسیع جو کچھ کرنے والے تھے کہ اب اسے اپنی عزت بچانے کے لالے پڑ گئے تھے۔
तंजील के ऑफिस जाते ही शमाला जानबूझकर वसी को घर बुला लेती और फिर वो उसे खुली जोर दे देती कि जो दिल चाहे वो सलूक कर सके इसके साथ। और कमज़ोर वसी वैसे ही मौक़ों की तलाश में रहता था। वो मिसाल को हरासा करने लगा। मिसाल को बहुत खौफजदा हो गई थी। इन दोनों ने इसका जीना हराम कर दिया था। वैसे कभी किचन में आकर हरासा करता तो कभी इसके कमरे तक आ जाता। कहते हैं जालिम के जुल्म पर खामोशी इख्तियार करना जुल्म करने वाले से भी ज़्यादा जुल्म है, क्योंकि ये जुल्म देखकर भी खामोशी इख्तियार किए रखता है। और यही कुछ इस वक्त मिसाल कर रही थी। इन दोनों के जुल्म पर मुकम्मल खामोशी इख्तियार किए हुए थी। मिसाल ने सोच लिया था कि अब वो तंजील को इस बारे में सब कुछ बताएगी, लेकिन शायद तब तक उसने बहुत देर कर दी थी, क्योंकि दूसरी तरफ शमाला तंजील के कानों में ये बात डाल चुकी थी कि उसे शक है कि मिसाल का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। तुम्हारे ऑफिस जाते वो किसी मर्द को घर बुला लेती है, और जब मैं कुछ पूछने लगती हूँ तो वो मुझे बातें सुनाने लग जाती है। मैंने सोचा कि वो लड़की तुम्हारी आंखों में धूल झोंक रही है तो तुम्हें खबरदार कर दूँ। क्या बकवास कर रही हो? तो मिसाल ऐसी नहीं है। शमाइला का इंसान सुनकर तंजील आपे से बाहर हो गया था। अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो किसी दिन अचानक घर आकर खुद ही देख लेना। वो किसी मर्द के साथ अकेली कमरे में होती है। ये सुनकर तंजील के गुस्से से रगें तन गई। वो मिसाल पर शक नहीं करना चाहता था, लेकिन शमाइला की इन बातों ने तंजील को मिसाल पर शक करने के लिए मजबूर कर दिया था। शमाइला ने कॉल करके वसी को बता दिया था कि उसने वैसा ही किया है जैसा प्लान किया गया था। पूरी रात तंजील ने गोया कांटों के बिस्तर पर गुजारी थी। बड़ी सी चादर से मुकम्मल खुद को छुपाए खामोशी से सर को झुकाकर नाश्ता करती मिसाल के इस मासूम चेहरे को देखते तंजील का दिल यकीन करने पर आमादा ही नहीं हो रहा था कि वो भला ऐसा भी कुछ कर सकती है। वो रिश्ते ज़्यादा देर तक नहीं चल पाते जिनमें शक की ज़रा सी भी आमेजिश हो, और शमाइला ने इन दोनों के रिश्ते के दरमियान शक का बीज बो दिया था। तंजील का दिल नाश्ते से उचाट हो गया था और वो नाश्ता किए बगैर ही ऑफिस चला गया। तंजील के नाश्ता ना करने पर मिसाल फिक्रमंद हुई थी। मिसाल नमाज इशा अदा करने के बाद हाथ उठाए अपने रब से दुआ मांग रही थी। ऐ मेरे अल्लाह जी, मुझे इन दरवाज़ों पर दस्तक देने से बचा जो मेरे लिए नहीं बनाए गए, और मेरे कमज़ोर दिल को इस चीज़ से वाबस्ता ना होने देना जो मेरे लिए नहीं है। अल्लाह जी, आप कभी भी मुझसे नाराज़ मत होना। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन आपकी नाराज़गी नहीं, क्योंकि मेरा आपके सिवा इस दुनिया में कोई भी नहीं। आप ही मेरे हाल से वाकिफ़ हैं, और इससे भी जो मेरे दिल और दिमाग में। अभी वो दुआ पूरी भी ना कर पाई थी जब वसी दरवाज़ा खोलकर इसके कमरे में दाखिल हुआ। या मेरे अल्लाह, उसे अपने कमरे में दाखिल होते देखकर दुआ अधूरी छोड़कर घबराती अपनी चादर दुरुस्त करती उठ खड़ी हुई। आप यहाँ क्यों आए हैं? तुम जानती हो कि मैं यहाँ क्यों और किस लिए आता हूँ। अब इतनी भोली तो ना बनो यार। कम ऑन, जस्ट रिलैक्स यार। अब इतना फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मेरे और तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं। ईजी होकर बात करो। वसी आंख मारता बाकी से हंसकर बोला, आप प्लीज़ चले जाइए यहाँ से, तंजील आने वाला होगा। हाँ तो आने दो ना यार, मैं खुद भी यही चाहता हूँ कि वो हम दोनों को देख लें और फिर तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाओ। बहुत चाहता हूँ मैं तुम्हें। कितनी हसीन हो तुम। मैं तुम्हारे हुस्न को सराहना चाहता हूँ। ये क्या यार, हर वक्त टाट में खुद को बंद किए रखती हो। तुम्हारा तुम नहीं घुटता क्या इस टाट से? वसी का इशारा इसकी बड़ी सी चादर की तरफ था जो हर वक्त ओढ़े रहती थी। चलो उतार दो उसे। तुम इस तरह देखकर मेरा दम घुट रहा है। क्या फ़ायदा ऐसे हुस्न का जिसे तुमने उस टाट में छुपा कर रखो। वसी बदमज़गी से बोला, मेरा ये हुस्न मेरे शौहर के लिए और सिर्फ इसी के लिए ही ये हक है कि वो मेरे हुस्न को सराहे। आप कौन होते हैं ये सब कहने वाले? क्या कहा? शौहर? वसी हंसा। हाय फुट, किस शौहर की बात कर रही हो तुम? वो जो तुम्हें घास तक नहीं डालता, हर वक्त शमाइला के आगे पीछे घूमता रहता है, उसे ही सूंघता रहता है। मैं कह रहा हूँ मेरी हो जाओ, कसम से बहुत ऐश दूंगा मैं तुम्हें। चलो हटाओ इस टाट को। वसी ने इसकी चादर की तरफ हाथ बढ़ाया। मिसाल 2 कदम पीछे को हुई थी। कम ऑन यार, डरो मत। हमें कोई भी नहीं देख रहा। अल्लाह के वास्ते मत करें ऐसा। मत भूलें कि अल्लाह देख रहा है सब। इसकी आंख से कुछ भी ओझल नहीं है। मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? प्लीज़ मुझे बख्श दें खुदा के वास्ते। ये देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मिसाल ने इसके आगे हाथ जोड़ दिए, जिन्हें वसी ने अपने दोनों हाथों की गिरफ्त में ले लिया। यार ऐसे तो ना करो। यहाँ। वसी अपने सीने पर हाथ मारते हुए बोला, यहाँ तकलीफ होती है मुझे। बहुत अच्छी लगती हो तो मुझे। तंजील को तो तुम्हारी कोई कदर ही नहीं है, इसलिए सोचा कि तुम्हें अपना बनाकर तुम्हें वो प्यार और मोहब्बत दूंगा जिसकी तुम असल हकदार हो। बहुत प्यार दूंगा मैं तुम्हें, कसम से। मेरे पास हर चीज़ है, बस तुम्हारी कमी है। फिर क्या कहती हो तो? इसके छूने पर मिसाल को जैसे करंट लगा था। वो जल्दी से पीछे को हुई थी। घिन आ रही है मुझे आपसे और आपकी बातों से। दूर रहें मुझसे। खुदा से डरें। कुछ क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? मिसाल ये कहते बेबसी से रोक दी। किसी का दिल मत दुखाए कि इसके आंसू पूरी ज़िंदगी आपके लिए सज़ा बन जाए। वाह यार, तुम तो बहुत अच्छा बोलती भी हो। आई एम इम्प्रेस यार।
वसी ने तालियां बजाईं। इसी वक्त शुमाइला भी कमरे में चली आई। इसे देखते ही मिसाल उसकी तरफ मदद के लिए भाग गई, मगर वो नहीं जानती थी कि वो भी तो इसी की घटिया प्लान में वसी के साथ बराबर की शकील थी। प्लीज़ शुमाइला, मुझे इससे बचा लो, इसकी नीयत ठीक नहीं है। प्लीज़, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है। मिसाल उसे खुदा के वास्ते दे रही थी और वो बेहिस बनी बेबसी पर वसी के साथ कह लगा रही थी। मिसाल के आंसू गिरने लगे। वसी इसकी तरफ बढ़ा। इस पर दरिंदगी गालिब आ गई थी। मिसाल भाग कर बेड पर चढ़ गया। जितना भी भागना चाहे भाग लो चिड़िया, आज तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकेगा। ये कहता वसी भी बेड पर चढ़ आया। मिसाल जल्दी से बेड की दूसरी साइड को कूद गई। मिसाल रोते हुए खुदा के वास्ते देती इन दोनों से अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी, मगर वो दोनों तो जैसे बहरे हो गए थे। खुदा के वास्ते इन्हें सुनाई ही नहीं दे रहे थे। वो अपनी ताकत के नशे में चूर एक मासूम पर जुल्म करने जा रहे थे। शुमाइला ने पहले ही तंजील को मैसेज कर दिया था, वो बस पहुंचने ही वाला है। मिसाल दीवार से लगी सर उठाया अपने रब को पुकार रही थी। या मेरे अल्लाह, मुझे बचा ले इन दरिंदों से। मेरे अल्लाह, तेरे सिवा कोई नहीं है मेरी मदद करने वाला। ऐसी ज़िंदगी जीने से बेहतर है कि आप मुझे मौत दे दें। मिसाल चीख कर अपने रब को पुकार रही थी और वो दोनों नहीं जानते थे कि इस मजलूम की ये पुकार अर्श को हिला गई थी। बहुत जल्द इनका मकाफाती अमल शुरू होने वाला था। शुमाइला ने वसी को इशारा किया कि तंजीन आ रहा है, अब यहाँ से फ़ौरन भाग जाओ। शुमाइला खुद भी कमरे से जल्दी से निकल गई। वसी उसे देखता मुस्कुराकर बोला, अभी जा रहा हूँ लेकिन फिर वापस आऊँगा। ये कहकर वसी उसे आंख मारता कमरे से निकल गया, लेकिन घर में दाखिल होते तंजील ने उसे मिसाल के कमरे से निकलते देख लिया था। तंजील को देखते ही वसी वहाँ से फ़ौरन भाग निकला। अलबत्ता तंजील गुस्से से बेपरा मिसाल के कमरे में चला आया। धार से दरवाज़ा खुला और तंजील को यूँ सख्त गुस्से में बेपरे अपनी तरफ आते देखकर खौफजदा सी मिसाल की रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई। तंजील, आप? मिसाल की ज़बान लड़खड़ाई। बदकिरदार लड़की, तुम मेरे पीठ पीछे ये सब करती फिर रही हो। तंजील दीवार से लगी सहमी हुई बैठी मिसाल को बाजू से पकड़कर उठाए बोला, अब तुम्हारा इस घर में मेरी बीवी की हैसियत से बनकर यहाँ पर रहना नहीं बनता। निकल जाओ यहाँ से अभी के अभी। वो मिसाल को घसीटता हुआ कमरे से बाहर लाया। तुम्हारे शोहर के होते हुए तुम किसी गैर मर्द के साथ मुंह काला करती फिरती हो। तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? अगर यही सब करना था तो मुझसे कह देती। शोहर था ना मैं तुम्हारा, हलाल का रिश्ता था हमारा। कम से कम तुम्हें यूं हराम को मुंह लगाकर गुनाहगार तो ना होना पड़ता। कैसे अल्फाज थे जो नश्तर बनकर इसके दिल में पेवस्त होकर इसके दिल और रूह को छलनी कर गए थे। उसने सुना था कि लफ्ज़ों के दांत नहीं होते, लेकिन वो काट लेते हैं, और अगर काट लें तो इनके ज़ख्म कभी नहीं भरते। और आज उसे इसका यकीन भी हो गया था। तंजील उसे बदकिरदार कह रहा था, वो इंसान जिससे वो बचपन से अंधी मोहब्बत करती आ रही थी। सच कहते हैं, अंधी मोहब्बत और या फिर अंधा भरोसा, ये दोनों मिलकर इंसान को गहरी खाई में गिरा देते हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरी मॉम ने मेरे लिए ऐसी बदकिरदार लड़की को चुन कैसे लिया। इनकी पसंद हमेशा से लाजवाब रही थी, यहाँ तक कि उन्होंने कभी मेरी जूती तक नहीं खराब ली थी, लेकिन फिर बीवी कैसे इतनी बदकिरदार पसंद कर ली। मिसाल बेयकीनी से तंजील को देख रही थी, जो अपने अल्फाजों से इसके जिस्म से रूह निकाल रहा था। शोर सुनकर शुमाइला जानबूझकर अपने कमरे से ऐसे भाग रहे जैसे उसे कुछ खबर ही ना हो। तंजील, ऐसा कुछ नहीं है जो आप समझ रहे हैं। मिसाल ने अपनी सफाई देनी चाहिए। मेरा इस आदमी से कोई वास्ता नहीं है, मेरा रब गवाह है। मैंने कभी भी आपकी अमानत में खयानत नहीं की। मैंने हमेशा से खुद को आपकी अमानत समझा। आपके सिवा मैंने कभी किसी मर्द को ना देखा और ना इसके बारे में सोचा। मैंने अपने रिश्ते को पूरे दिल के साथ, पूरी ईमानदारी और वफादारी के साथ निभाया है। मैं बस बेकसूर हूँ, मेरा दामन पाक है। मेरा अल्लाह मेरा गवाह है। तंजील, बकवास बंद करो बदकिरदार लड़की। तंजील इसका मुंह दबोचे हो रहा। मिसाल को लगा अभी इसका जबड़ा टूट जाएगा। तुम जैसे लड़की के मुंह से खुदा का नाम लेते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। न जाने इस स्याह चादर के पीछे कितने स्याह कारनामे छुपा रखे हैं तुमने। वो अल्फाज नहीं थे, बल्कि वो दहकते हुए अंगारे थे जो तंजील ने इसकी रूह पर फेंके थे। इन अंगारों से उसकी रूह झुलस गई थी। जब मुझे यह सब शुमाइला ने बताया था तो मैंने इन सब को झूठ समझा। मुझे यकीन ही नहीं था कि तुम ऐसा कुछ कर सकती हो। शक्ल से तो फरिश्ता मालूम होती हूँ, लेकिन काम तुम्हारे शैतानों वाले हैं। मैं सच में गलत था, बिल्कुल गलत। जो तुम्हें मासूम समझता रहा, आज अपनी आंखों से देख लिया। मिसाल ने आंसू से तर निगाहें उठाई और सामने खड़ी मक्कारी से मुस्कुराती शुमाइला को देखा। अल्फाज जैसे खत्म हो गए थे। अब वो क्या कहती? वो शख्स तो इस पर यकीन ही नहीं करना चाह रहा था। वो बस इसी पर यकीन कर रहा था जो इसे दिखाया और बताया जा रहा था। शुमाइला जल्दी पर तेल छिड़कने का काम करते हुए बोली, हाँ तंजील, अब जबकि इसका पूरा पोल खुल गया है तो मैं तुम्हें बता दूं कि उस लड़की के साथ क्या कुछ करती थी कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। मेरे पास अल्फाजों का ज़खीरा ख़त्म हो जाएगा। ऐसी शर्मनाक हरकतें की हैं कि अरमान अल हफीज़ शैतान भी शर्मा जाए इसकी ये हरकतें देखकर।
میں خاموش تھی اس لیے کہ کہیں اس کا گھر نہ اجڑ جائے۔ مثال اس بہتان پر بالکل ساکت سی رہ گئی، جسم ڈھیلا پڑ رہا تھا۔ تنزیل اسے بازو سے دبوچے بری طرح سے جھنجھوڑتے گھرایا۔ ہاں اب بولو، اب کس گواہ کو لائے گی اپنی گواہی دلانے اور اپنی پاک دامنی کا ثبوت پیش کرنے؟ مثال کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ آپ لوگوں نے مجھے اس قدر بے بس کر دیا ہے کہ میں کچھ بول ہی نہیں پا رہی، لیکن ہاں ایک گواہ ہے۔ مثال اپنی کامتی انگلی اٹھائے بولی، وہ اوپر عرش عظیم کا مالک، وہ میرا گواہ ہے کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اگر آپ کو اس سچے گواہ پر یقین نہیں ہے تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ بکواس بند کرو تم اپنی، تنزیل غصے سے چیخا۔ اپنی اس بد کرداری کو چھپانے کے لیے تم اس پاک ذات کا نام استعمال کر رہی ہو۔ تم تو جھوٹ بولنے میں بھی ماہر ہو۔ بس میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ تنزیل نے ذرا توقف کے بعد گہری سانس لی۔ اب تم مزید اس گھر میں میری بیوی بن کر نہیں رہ سکتی۔ تم اس لائق نہیں ہو کہ تنزیل روشان منیر تمہیں اپنے نکاح میں باندھ کے رکھے۔ میں تنزیل روشان منیر اپنے پورے ہوش آواز میں مثال عظیم ترین کو طلاق دیتا ہوں۔ نہیں نہیں تنزیل، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، خاموش ہو جائے۔ اتنا بڑا ظلم نہ کرے مجھ پر۔ مثال کو جیسے یکدم ہوش آیا تھا تو اس نے آگے بڑھ کر اپنا کامتا ہوا ہاتھ اس کے ہونٹوں پر رکھ کر اسے کچھ بولنے سے روکنے کی کوشش کی۔ میں بے قصور ہوں، میرا اللہ گواہ ہے، مجھ پر نہ سے اس خدا پر تو یقین ہے نا آپ کو؟ ہاں بتائیں، مثال نم آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ تنزیل نفرت سے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے دھاڑا۔ ہاتھ ہٹاؤ اپنا بد کردار لڑکی، خبردار جو تم نے اپنے ناپاک ہاتھوں سے چھوا بھی تو میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ مثال کا ہاتھ بے جان ہو کر اس کے پہلو میں آ گرا اور وہ بے سود نیچے گر گئی۔ خوابوں اور خیالوں کا خوشکن محل مٹی کا ڈھیر ہو چکا تھا۔ تنزیل کے ساتھ زندگی گزارنے کے وہ سارے سنہرے خواب چکنا چور ہو گئے تھے۔ چادر اس کے سر سے ڈھلک کر کندھوں پر آن گری تھی۔ وہ بت بنے فرش کو تکے جا رہی تھی، آنسو تھے کہ گرتے ہی چلے جا رہے تھے۔ یہ کیسا اختتام تھا اس رشتے کا جسے وہ پورے دل کے ساتھ بچپن سے لے کر اب تک نبھاتی آ رہی تھی۔ اس یقین اور بھروسے کو چند سیکنڈز میں تنزیل نے مٹی کا ڈھیر بنا دیا تھا۔ اس شخص نے اسے اپنی صفائی کا موقع تک نہ فراہم کیا۔ اس عدالت میں وہ مدعی بھی خود تھا اور جج بھی، اور اپنی مرضی کا فیصلہ بھی سنا دیا۔ یہ کیسا انصاف تھا؟ اب یہاں کے بیٹھی بیٹھی ماتم منا رہی ہوں، جاؤ اپنے اسی یار کے پاس جا کر ماتم مناؤ۔ تمہاری اس گھر میں کوئی جگہ نہیں، اب تمہیں کوئی بھی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے۔ جو مرضی چاہے وہ کرو، اب تم اس رشتے سے آزاد ہو۔ یہ کہہ کر تنزیل نے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور گھسیٹتا ہوا باہر لے گیا۔ کندھوں سے نیچے کو لٹکتی چادر اس کے ساتھ ہی گھسٹتی ہوئی جا رہی تھی۔ پیچھے کھڑی شمائلہ نے زور کا کہکہا لگایا۔ یہ مصیبت کی آخری جڑ میں نے بھی نکال کر پھینک دی۔ اب میرے اور تنزیل کے درمیان کوئی نہیں آنے والا۔ ایک بار پھر بلند کہکہا بلند ہوا۔ تنزیل نے اسے بازو سے پکڑ کر گیٹ کے باہر دھکیلا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے اور آئندہ مجھے اپنی شکل تک مت دکھانا۔ وہ زمین پر گری تھی، اپنا چہرہ اٹھا کر تنزیل کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، بہت پچھتائیں گے آپ ایک دن، دیکھنا جب آپ کو حقیقت پتہ لگے گی۔ اس وقت آپ مجھ سے معافی مانگنا چاہیں گے لیکن میں معافی دینے کے لیے آپ کے پاس موجود نہیں ہوں گی۔ تنزیل، میری بد دعا ہے آپ دونوں کبھی بھی خوش نہیں رہیں گے۔ جس طرح آپ نے مجھ بے سہارا کیا ہے اسی طرح آپ لوگ بھی ایک دن بے سہارا ہوں گے۔ آپ سکون کے لیے تڑپیں گے اور آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ میرا اللہ ایک دن میرے پاک دامنی کی گواہ دے گا اور وہ وقت آپ کے لیے باعث ندامت اور باعث شرمندگی ہوگا۔ میرا اللہ آپ کو نہیں چھوڑے گا، دیکھنا آپ۔ مثال زمین پر ہاتھ مارتی زاروں قطار روتی سر جھکائے دونوں کو بد دعائیں دے رہی تھی۔ تنزیل وہاں سے چلا گیا تھا۔ شمائلہ اس کا سوٹ کیس لے آئی تھی جس میں اس کے کپڑے اور ضرورت کی کچھ چیزیں تھیں۔ وہ سوٹ کیس مثال کی طرف پھینکتے ہوئے حقارت سے بولی، اپنا یہ سامان بھی اپنے ساتھ لیتے جاؤ، میں اس گھر میں تمہاری کوئی بھی چیز برداشت نہیں کر سکتی۔ مثال نے شمائلہ کو خود پر ہنستے ہوئے دیکھا تو بولی، مجھے اس وقت کا انتظار ہے جب تمہارا مکافات عمل شروع ہوگا شمائلہ۔ مت بھولو یہ دنیا مکافات عمل ہے، جو بوئے گا وہی کاٹے گا۔ رلایا ہے تو رونا بھی پڑے گا۔ تم نے مجھ پر بہتان لگایا اور اس کی سزا میرا رب ضرور دے گا کیونکہ مظلوم کی عرش کو ہلا دیتی ہے۔ یاد رکھنا سکون پانے کے لیے تڑپو گی لیکن سکون نہیں ملے گا تمہیں۔ تم سچی خوشی کے لیے پل پل تڑپو گی۔ یہ میری بد دعا ہے شمائلہ۔ مثال وہیں نیچے بیٹھی چہرہ ہاتھوں میں چھپائے بلک بلک کر روتی۔ تم نے مجھے رات کے اندھیرے میں گھر بدر کر دیا، تمہیں بھی اس گھر میں سکون نہیں ملے گا شمائلہ۔ میرا رب تم سے میرا بدلہ ضرور لے گا۔ اس کے الفاظوں میں کچھ تو ایسا تھا کہ شمائلہ ایک لمحے کے لیے کانپ سی گئی۔ اس نے ڈر کر گیٹ ہی بند کر دیا اور وہ اس کی بد دعاؤں سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ پھر خود کو تسلیاں دیتے ہوئے بولی، نہیں نہیں، ان بد دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا، اور اسے وہی ملا جو اس کی قسمت میں لکھا تھا۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔
یہ کہتے وہ مسکراتی ہوئی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر تک وہ وہیں بیٹھی روتی رہی، پھر اپنے آنسو صاف کرتی سوٹ کیٹ اٹھاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں جانتی تھی کہ اب اسے کہاں جانا ہے۔ یہ شہر اس کے لیے بالکل انجان تھا، وہ یہاں کسی کو بھی نہیں جانتی تھی۔ اب اسے شدت سے تنویر کی باتیں یاد آ رہی تھی۔ انہوں نے سچ کہا تھا کہ مجھے تنزیل پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کاش میں ان کا فون نمبر نہ جلاتی۔ اب میں کہاں جاؤں؟ خدا کے سوا اب میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ آنسو تواتر سے بہتے چلے جا رہے تھے۔ کافی دیر تک چلتی رہی، لیکن کسی سمت کا تعین کیے بغیر۔ جب تھک گئی تو کچھ دیر سستانے کے لیے ایک جگہ رکھی بینچ پر بیٹھ گئی۔ وہ خاموشی سے سامنے سڑک پر آتی جاتی گاڑیوں کو دیکھ رہی تھی۔ ایک بار پھر سے تنزیل کے وہ سخت روح کو چیر دینے والے الفاظ اس کی سماعتوں سے ٹکرانے لگے۔ اپنے جذبات پر قابو رکھ نہ پاتی، وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ درد انسان نہیں دیتا، بلکہ انسان سے وابستہ ہماری امیدیں ہمیں درد دیتی ہیں۔ انسان کی محبت میں اور اللہ کی محبت میں یہی تو فرق ہے کہ انسان کی محبت تمہاری سب سے بڑی کمزوری بن جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے محبت آپ کی سب سے بڑی طاقت بن جاتی ہے۔ یہی حال مثال کا بھی تھا۔ اس نے شاید تنزیل سے بہت زیادہ امیدیں وابستہ کر لی تھیں۔ اس ظالم نے یہ بھی نہ سوچا تھا کہ اس کا اس بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے اس کے سوا۔ وہ کہاں جاتی؟ مثال کو اپنی بے بسی پر رونا آ رہا تھا۔ وہ کراچی جانا چاہتی تھی، اپنے گھر، مگر اس کے پاس کرایہ نہیں تھا کراچی جانے کے لیے۔ کیسی بے بسی تھی۔ وہ آسمان کو دیکھتی اپنے رب سے بولی، میرے اللہ جی میری مدد کرے۔ میں نے کبھی کسی کا برا نہیں سوچا اور نہ ہی کسی کے ساتھ کبھی برا کیا، اور مجھے یقین ہے کہ آپ بھی میرا برا نہیں چاہیں گے۔ میں پوری دنیا سے مایوس ہو سکتی ہوں، لیکن آپ کی ذات سے نہیں، کیونکہ آپ نے اپنی کتاب میں فرمایا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ میں بھی آپ کی رحمت کی طلبگار ہوں میرے اللہ جی۔ مثال اپنا سر ہاتھوں میں گرا اپنے جوتوں کو دیکھ رہی تھی جن پر آنسو ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ اسی وقت ایک ٹیکسی اس کے پاس آ کر رکی اور نسوانی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ ہیلو ایکسکیوز می، کیا آپ کو ہیلپ چاہیے؟ مثال نے چونک کر سر اٹھایا۔ گاڑی کا شیشہ نیچے کیا ایک 20-22 سالہ خوبصورت سی لڑکی اسی سے ہی مخاطب تھی۔ کین آئی ہیلپ یو؟ وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ مثال کی آنکھیں بے اختیار بھیگ گئی۔ اس کا اپنے رب پر ایمان مزید بڑھ گیا تھا۔ اتنی جلدی میرے رب نے میری پکار سن لی۔ ہاں، یہ میرے رب کی غیبی مدد ہے، مجھے اس کی مدد لینی چاہیے۔ مثال اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، جی مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ تو پھر آؤ، بیٹھو۔ اندر بیٹھی اس ہنسمکھ لڑکی نے اسے اندر آنے کا کہا۔ مثال نے اپنا سامان ڈبی میں رکھا اور اس لڑکی کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ٹیکسی ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ مثال نے دیکھا وہ لڑکی شکل سے بہت معصوم اور پیاری تھی۔ بات کرنے میں اسی نے ہی پہل کی تھی۔ وہ مثال کی طرف ہاتھ بڑھائے بولی، ویسے میرا نام کستوری جیمس ہے، میں کرسچن ہوں۔ ابھی مام کے بہت اصرار پر میں پاس والے چرچ گئی تھی عبادت کرنے۔ حالانکہ مجھے ان سب میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن مام کا اصرار بڑھنے لگا تو آج نکال کر چرچ چلی آئی۔ ابھی میں ہاسٹل جا رہی ہوں۔ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میری مام ہندو اور ڈیڈ کرسچن ہے۔ دونوں کی لو میرج ہوئی تھی، تو مام نے بھی اپنا ریلیجن بدل لیا، اب وہ کرسچن ہے۔ انہیں اپنے مذہب سے بہت لگاؤ ہے، لیکن مجھے بالکل بھی نہیں۔ وہ اکثر کال کر کے مجھے چرچ جانے کا کہتی رہی، لیکن مجھے ان سب میں بالکل بھی دلچسپی نہیں۔ لیکن ماں مجھے اتنا مجبور کرتی ہیں کہ مجھے چرچ جانا پڑتا ہے۔ ویسے میں یہاں پڑھنے آئی ہوں۔ میرے مام ڈیڈ لاہور میں رہتے ہیں۔ میں ان کی اکلوتی بیٹی ہوں اور بہت لاڈلی بھی ہوں۔ بہت مشکل سے مجھے ان کی پرمیشن ملی ہے یہاں کر پڑھنے کی، ورنہ تو وہ مجھے خود سے دور بھی نہیں کرتے۔ مثال نے اس کی باتیں کرنے کے اندازہ لگایا کہ وہ بات دونی لڑکی ہے۔ وہ کافی دیر تک باتیں کرتی رہی۔ جب احساس ہوا کہ وہ کچھ زیادہ ہی بول گئی ہے تو اپنی زبان دانتوں تلے دباتی معذرت کرتے بولی، آئی ایم سوری، میں کچھ زیادہ ہی بول گئی۔ دراصل میری کوئی فرینڈ نہیں ہے نا، تو اسی لیے آج تم مل گئی تو میرا دل اور زبان دونوں پہ قابو ہو گئے۔ کوئی بات نہیں، تمہیں باتیں کرتے ہوئے دیکھ کر مجھے اچھا لگا، ہے نا؟ مجھے پتا تھا، میرے مام ڈیڈ بھی یہی کہتے ہیں۔ کستوری کی اس معصومیت پر مثال ہولے سے مسکرائی۔ ارے یہ کیا، میں ہی کب سے بولے جا رہی ہوں، تم بھی کچھ بتاؤ نا اپنے بارے میں۔ نام کیا ہے تمہارا؟ مثال عظیم ترین۔ اوہ مثال نہیں مثال نے تصحیح کی۔ اوہ اچھا مثال، بہت اچھا نام ہے تمہارا، آج سے ہم دونوں فرینڈس ہیں۔ کستوری جیمس نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تو مثال نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مثال اس کا ہاتھ تھامتے بولی، تم میری پہلی دوست ہو، ورنہ میں نے اپنی پوری زندگی میں اپنے رب کے سوا کسی کو بھی اپنا دوست نہیں بنایا۔ تم بھی میری پہلی فرینڈ ہو مثال، کستوری نے ہنستے ہوئے کہا۔ مام ڈیڈ تو مجھے کسی کے ساتھ بھی دوستی نہیں کرتے دیتی، خاص طور پر مام، وہ کہتی ہیں کسی سے بھی دوستی مت کرنا۔ وہ کیوں؟ مثال کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا۔
वो इसलिए कहती हैं कि दोस्ती निभाना बहुत मुश्किल काम होता है। वो हमेशा कहती हैं कि दोस्ती करना इतना आसान है जैसे मिट्टी पर मिट्टी लिखना, और दोस्ती निभाना इतना मुश्किल है जैसे पानी पर पानी लिखना। तुम्हारी मम्मा तो बहुत अच्छी बातें करती हैं। विशाल इम्प्रेस हुई थी। हाँ, बिल्कुल सही कहा, तभी तो वो हाल ही लेक्चरर और मुकर्रर हुई हैं। वो दोनों हंसी थी। वैसे तुम ये सूटकेस लेकर कहाँ जा रही हो इस वक्त? कस्तूरी के इस सवाल पर मिसाल की मुस्कुराहट गायब हो और आंखें एक बार फिर से आंसुओं से भर गई। वो तल्ख हकीकत फिर से इसकी आंखों के सामने लहरा गई। मिसाल ने अपने आंसुओं पर काबू पाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रही और बिलक बिलक कर रो दी। आई एम रियली सॉरी। क्या मैंने कुछ गलत पूछ लिया? आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें बुरा लग जाएगा। कस्तूरी जेम्स से यूं रोते हुए देखकर परेशानी से बोली। नहीं, मैं इसलिए नहीं रो रही। तो फिर? तुम मुझे बता सकती हो, तो मुझ पर भरोसा कर सकती हो। मिसाल ने रोते हुए उसे अपनी पूरी कहानी सुना डाली। कस्तूरी जेम्स तो कुछ देर तक कुछ बोल ही ना पाई। ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। गॉड इन तीनों को कभी माफ़ नहीं करेगा। कस्तूरी मिसाल के कंधे पर हाथ रखते बोली। तुम परेशान बिल्कुल भी ना हो। तुम अब मेरी फ्रेंड हो और तुम्हारी मदद करना मेरा फ़र्ज़ है। तो मेरे साथ गर्ल्स हॉस्टल चलो। मेरी रूममेट चली गई है, तो मेरे साथ वो कमरा शेयर कर सकती हो, मगर तुम्हें मेरी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्त कहा है तो भरोसा भी रखो मुझ पर मिसाल। मैं इन लोगों में से हूँ जो दोस्ती करना भी जानते हैं और दोस्ती निभाना भी। तो मेरी पहली और आखिरी दोस्त, और मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। ये कस्तूरी जेम्स का वादा है तुमसे। कभी आजमा कर देख लेना तुम। अगर तुम्हें कभी भी मुश्किल पेश आई और मेरी जान जाने से अगर तुम्हारी जान बचती है, तो मैं अपनी जान देने से भी गुरेज नहीं करूँगी। ये कस्तूरी जेम्स का मिसाल अजीम से वादा रहा। मिसाल इसके गले से लग गई। कस्तूरी मुस्कुराई और उसकी पीठ सहलाने लगी। वैसे तुम्हारे साबका शौहर ने खुद के साथ बहुत बुरा किया। उसने एक हीरे को ठोकर मारी है, और जब कोई हीरे को ठोकर मारता है ना, तो वो टूटता नहीं बल्कि फिसल कर बहुत दूर चला जाता है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। कस्तूरी से देखती बोली। क्या तुम गमज़दा हो? मिसाल धीरे से मुस्कुरा दी। नहीं, मैं बिल्कुल भी गमज़दा नहीं हूँ। शायद अल्लाह ताला ने इनका साथ मेरे नसीब में बस इतना सा ही लिखा था। मुझे अपने रब से कोई शिकवा नहीं है। क्या पता अल्लाह ताला ने मेरे लिए इससे बेहतर लिखा हो। हाँ, बिल्कुल, तुम बहुत अच्छा इंसान ही डिज़र्व करती हो। मेरी गॉड से दुआ है कि तुम्हें एक बेहतरीन, तुमसे मोहब्बत करने वाला और तुम्हारी कदर करने वाला हमसफ़र मिले। कस्तूरी ने उसे दुआ दी। शायद वो कबूलियत की घड़ी थी। कस्तूरी उसे अपने साथ हॉस्टल ले आई थी। कस्तूरी जेम्स सच में बहुत अच्छी लड़की थी। वो इसका बहुत ख्याल रखती थी। जब तक उसने अपनी इद्दत न पूरी कर ली, वो इसका खर्चा उतारती रही। अब मिसाल को शर्मिंदगी होने लगी थी कि वो बोझ बन गई है इस मासूम लड़की पर। हालांकि वो बहुत खुददार थी। उसने कस्तूरी से पहले ही ये डील कर ली थी कि वो इसके साथ एक शर्त पर ही रहेगी। हॉस्टल में रिहाइश और खाने पीने का बिल खुद अदा करेगी। कस्तूरी ने बहुत मना किया कि इसके डैड एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, वो इसके लिए हर महीने बहुत बड़ी रकम इसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन मिसाल की खुददारी आड़े आ जाती थी। मिलाकर कस्तूरी को इसकी बात मानना पड़ी। इद्दत पूरी करने के बाद मिसाल अब जॉब ढूंढ रही थी। इन 5 महीनों में कस्तूरी इसे बहुत अच्छे से जान गई थी। वह एक खुली किताब की तरह थी जिसे हर कोई आसानी से पढ़ सकता था। वो अपने साथ साथ कस्तूरी भी सारे काम कर दिया करते थी। मिसाल अपनी क्लास की टॉपर थी। वो अक्सर पढ़ाई में कस्तूरी की हेल्प की करती थी, जिसकी वजह से कस्तूरी इसकी एहसानमंद हो गई थी। मिसाल के आने से इसकी बहुत सारी मुश्किलात आसान हो गई थी। मिसाल घंटों जाए नमाज पर बैठी इस हाथ उठाए अपने रब से न जाने क्या राजो न्याज करती रहती थी। इसकी दुआएं बहुत लंबी हो गई थी। जब वो सजदे में जाती तो फूट फूट कर रोती। कुरान की तिलावत करते हुए अचानक कोई अज़ाब इलाही वाली आयत सामने आ जाए तो खौफ इलाही से रो पड़ती। उसे डर था कि कहीं अपने रब को नाराज़ तो नहीं कर बैठी। जब रात को चाय नमाज पर बैठती तो आधी रात गुजर जाती, और कस्तूरी के लिए यह सब बिल्कुल नया था। वो इस तर्ज़ इबादत से बहुत मुतासिर हुई थी। इसका भी दिल चाहता कि वो भी वैसी ही इबादत करे। अक्सर औक़ात जब मिसाल सजदे में गिरी रो रही होती तो इसके दिल को कुछ होता था। वो खुद से सोचती, इनकी इबादत हमारी इबादत से एकदम मुख्तलिफ और बहुत प्यारी भी है। मिसाल नमाज पढ़ने के बाद हाथ उठाए दुआ में मशगूल थी जब कस्तूरी उसे खाने के लिए बुलाने आई थी, लेकिन उसे दुआ मांगते देखकर वो आहिस्तगी से चलती हुई उसके पास आकर बैठ गई। वो दोनों हाथ फैलाए अपने रब से दुआ मांग रही थी। आंखों से आंसू टूटकर इसकी हथेलियों पर गिर रहे थे। उसे यूं रोते देखकर कस्तूरी की आंखें भी न जाने क्यों नम होने को बेकरार हुईं।
दुआ मांगकर दोनों हाथों को चेहरे पर फेरे। अपने पास किसी की मौजूदगी का एहसास जानकर मिसाल ने गर्दन मोड़कर पीछे देखा तो कस्तूरी इसके पास बैठी थी। अरे कस्तूरी, तुम यहाँ? कोई काम था क्या? हाँ, वो बस मैं तुम्हें बुलाने आई थी कि खाना खा लो। अच्छा ठीक है, चलो खाना खाते। मैंने भी नमाज़ पढ़ ली है। मिसाल जानेमाज़ से उठने लगी कि कस्तूरी इसके हाथ से पकड़कर उसे वापस बिठाते बोली, एक बात पूछूं मैं तुमसे? हाँ पूछो, मिसाल मुस्कुराकर बोली। तुम ये हर नमाज के बाद रोती क्यों हो? मैंने तुम्हें बहुत बार रोते हुए देखा है। क्या तुम्हें बहुत तकलीफ होती है? क्या लोगों ने तुम्हें बहुत सताया है? तो मैंने बद्दुआ क्यों नहीं देती? मैंने सुना है कि मसलूम की बद्दुआ बहुत जल्द लगती है सालमों को। कस्तूरी एक ही सांस में ये सब कह गई। मिसाल इसकी पूरी बात सुनकर मुस्कुराई और फिर इसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेती बोली, मैं अपने दिल की कैफियत अपने रब को बताती हूँ। मैं क्या महसूस कर रही हूँ, कितनी तकलीफ में हूँ, मुझे क्या चाहिए। यकीन करो वो मुझे बहुत प्यार से सुनता है। इसके सामने रोने से और अपनी तकलीफ़ें बयान करने से मैं खुद को बहुत हल्का और पुरसकून महसूस करती हूँ। लोगों के सामने रोने से बेहतर है कि इंसान अपने प्यारे रब के सामने रोया करे। बेशक हमारा अल्लाह दिलों का हमराज है। अल्लाह ताला फरमाता है, सबको छोड़कर अंधा एतबार करो मुझ पर। यकीन करो मैं अपने वादों का बड़ा सच्चा हूँ। ज़िंदगी के अक्सर मकामात पर मैंने जाना और महसूस किया कि मेरे साथ अल्लाह के सिवा और कोई भी नहीं है। तब मैंने जाना कि अल्लाह का साथ होना किस कदर बेहतर है। कस्तूरी इसके अल्फाजों और इसकी बातों के सहर में जैसे खो गई थी। बस काफ के हाले में दमकते इसके साफ शफाफ मासूम से चेहरे को पूरे दिमाग से देखती उसकी बातें सुन रही थी। मिसाल ने गहरी सांस ली। और रही बात बद्दुआ की, तो चुप से बड़ी बद्दुआ कोई नहीं। जब बंदा बोलता है तो कुदरत खामोश हो जाती है और जब बंदा खामोश हो जाता है तो कुदरत इंतकाम लेती है। और कुदरत का इंतकाम बहुत बड़ा और सख्त होता है। मिसाल होले से मुस्कुराई। हर तबाही के लिए किसी बद्दुआ की ज़रूरत नहीं होती मेरी बहन। किसी का सब्र भी आपको तबाह बर्बाद कर सकता है। मकाफात अमल तो अटल है, देर सवेर हो जाती है मगर मकाफात टल नहीं सकता। अल्लाह की राठी बेआवाज़ है, वो ढील देता है, लेकिन जब रस्सी खींचता है तो इंसान मुंह के बल आ गिरता है और तब दुनिया की कोई भी ताकत उसे उठा नहीं सकती। वो लोग जो मजलूमों पर जुल्म करके मज़े से बैठे हुए हैं, वो आज नहीं तो कल मकाफात का मज़ा ज़रूर चखेंगे। मैंने अपना मामला अपने रब पर छोड़ दिया है, क्योंकि मेरे रब ने अपनी किताब में फरमाया है, और तेरा रब भूलने वाला नहीं। और मुझे अपने रब पर कामिल यकीन है, वो मेरा बदला इन सालमों से ज़रूर लेगा। कस्तूरी की आवाज़ भर आ गई। तुम्हें यूँ अपने रब के साथ लगाव देखकर मेरे दिल को कुछ होने लगता है। न जाने क्यों मैं इस दिन की तरफ खींची चली आती हूँ। मुझे समझ नहीं आती, लेकिन मेरा दिल अब चर्चाने को नहीं करता। मुझे चर्चाना शुरू से ही पसंद नहीं था, लेकिन मॉम मुझे ज़बरदस्ती ले जाया करती थी। मैं तुम्हें जब भी इबादत करते देखती हूँ तो मुझे एक कशिश अपनी तरफ खींचती है। नहीं मालूम कि मेरा दिल क्या चाहता है, लेकिन मैं खुद को बहुत पुरसकून महसूस करती हूँ जब तुम्हारे गार्ड के बारे में और तुम्हारे दिन के बारे में सोचती हूँ तो। इसकी बात सुनकर मिसाल मुस्कुराई। मुझे समझ आ गई थी कि इसके दिल में ईमान की किरण जगमगाने लगी है। दूसरे दिन मिसाल ने उसे कुछ इस्लामी कुतुब और तर्जुमा वाला लॉकर ला कर दिया ताकि इनका मुताला कर सके और जब वो बिल्कुल मुतमईन हो जाए तो पूरे दिल के साथ दीन इस्लाम में दाखिल हो। वो खुद भी वक्तन फ़वक्तन उसे दीन की दावत देती रहती थी। हर नमाज के बाद जब भी दुआ के लिए हाथ उठते तो सबसे पहले कस्तूरी के लिए ख़ास तौर पर दुआ मांगती कि अल्लाह ताला उसकी मोहसन इस प्यारी सी लड़की को दीन इस्लाम की समझ बूझ दे और वो इस्लाम कबूल कर ले। कस्तूरी के इस्लाम में दिलचस्पी बहुत बढ़ गई थी। वो दीनी कुतुब के साथ साथ इंटरनेट और मिसाल से भी इसके बारे में मालूमात लेने लगी थी। मिसाल को खुशी हुई थी जब कस्तूरी से इस्लामाबाद में इनके बारे में जानने की कोशिश करती। बहुत सी दुआओं और कोशिशों के बाद बिलाकर मिसाल को एक जगह जॉब मिल ही गई। सैलरी भी काफ़ी माकूल थी। इसने जब ये खुशखबरी कस्तूरी को सुनाई तो वो उससे ज़्यादा खुश हुई। इन दोनों ने इस रात इस खुशी को सेलिब्रेट किया। दोनों एक दूसरे की खुशी और गम में बराबर के शरीक थी। कस्तूरी हर हफ्ते कॉल करके अपने वालिदैन को अपनी खैरियत से आगाह करती थी। उसने उन्हें मिसाल के बारे में बताया कि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है और उसका बहुत ख्याल रखती है। पहले पहले तो वो दोनों परेशान हुए, लेकिन कस्तूरी के यकीन दिलाने पर मिसाल बहुत अच्छी और खूबसूरत लड़की तो वो दोनों भी मुतमईन हो गए। मिसाल ने ऑफिस जाना स्टार्ट कर दिया था। वो ऑफिस में वाहिद लड़की थी जो सर पर दुपट्टा लेती थी और जिन निगाहों से इसके कोलीग उसे देखते थे, मिसाल को इनकी नज़रों से वहशत होती थी। दूसरी बात जो मिसाल ने नोट की थी, वहाँ लड़कियाँ ना होने के बराबर थी और जो लड़कियाँ काम कर रही थीं वो इतनी खूबसूरत भी नहीं थी, बस मामूली सी शक्ल सूरत की मालिक थी। और तीसरी बात जो उसने नोटिस की थी,
वो इसके बॉस की निगाहें थीं। इसका बॉस आकिब रिजवी से अच्छी निगाहों से नहीं देखता था। जब भी देखता मिसाल को इसकी निगाहें अपने वजूद में चुभती और जिस्म का एक्सरे करते हुए महसूस होती थी। शायद इसलिए कि दौरान इंटरव्यू मिसाल ने उसे अपनी पूरी कहानी सुना डाली थी और इस वजह से भी अब वो बहाने से इसे हमदर्दी करता था ताकि वो इसकी तरफ माइल हो। इसे यहाँ पर काम करते हुए तकरीबन महीना होने वाला था। एक दिन कैंटीन में बैठे उसकी एक कॉलीग साथी लड़की ने जो बात उसे बताई, ये सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। जब वो ऑफिस से वापस आई तो बहुत खौफजदा और डरी हुई थी। क्या हुआ मिसाल, तुम ठीक हो? परेशान लग रही हो। कस्तूरी ने उसे परेशान देखा तो पूछ बैठे। मिसाल ने कस्तूरी को इस लड़की की पूरी बात सुना डाली। ओह, ये तो बहुत ही खतरनाक बात है। मुझे तुम्हारा बॉस यकीनन अच्छा इंसान नहीं लग रहा। और यहाँ यही बात उसने भी बताई थी कि हमारा बॉस आकिब रिजवी अच्छा इंसान बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ जो भी खूबसूरत लड़की काम करती है उसके साथ बहुत बुरा होता है। पहले वो इसके साथ बहुत अच्छा सलूक रखता है। जब वो इसके जाल में फंस जाती है तो वो इसे हरासमेंट करता है और फिर इनकी वीडियो बनाकर इन्हें ब्लैकमेल करता है। सुना है कि बॉस की वजह से 3-4 लड़कियां खुदकुशी भी कर चुकी हैं क्योंकि इनकी वीडियोस बॉस ने लीक कर दी थी। वो मुझे भी वार्न कर रही थी कि मैं आकिब सर से दूर रहूं और इनका सेक्रेटरी भी बहुत अजीब बिहेव करता है मेरे साथ। वो मुझे बहुत ही अजीब और गंदी निगाहों से घूरता है। पूरी बात सुनने के बाद कस्तूरी अपने सर पर हाथ मारते बोली, तुम इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हो मिसाल? तुमने एक अजनबी शख्स को अपनी पूरी कहानी सुना डाली। तुम जानती हो ना, इस दुनिया में इंसान की शक्ल में भेड़िए छुपे हैं जो बस लड़कियों की कमज़ोरियाँ जानने की कोशिश में लगे रहते हैं ताकि वो इन्हें नोच खाएं। तुम्हें अपनी अकल इस्तेमाल करनी चाहिए। यूँ किसी भी अजनबी को अपनी कहानी नहीं सुनाया करते यार। लेकिन उन्होंने मुझसे पूछा तो मैं कैसे इनसे झूठ बोलती। अम्मी ने मुझे बचपन में सिखाया था कि कभी भी झूठ ना बोलना। जो एक बार झूठ बोलता है तो फिर उसे झूठ बोलने की आदत हो जाती है और अल्लाह ताला झूठ बोलने वाले को सख्त नापसंद करते। और मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती। मिसाल की इस मासूमियत पर कस्तूरी ने अपना माथा पीट लिया। बेवकूफ़ लड़की, कभी कभार मसलहत के तहत झूठ बोलना पड़ता है। हम यूँ हर किसी को अपने बारे में बताते तो नहीं फिर सकते ना। इस तरह इन लोगों के हाथ हमारी कमज़ोरी आ जाती है और फिर वो लोग हमारी इन्हीं कमज़ोरियों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं अपने फ़ायदे के लिए। फिर वो हमारी इन्हीं कमज़ोरियों की वजह से हमें ब्लैकमेल करते हैं। मिसाल, आखिर तुमने अपनी पूरी ज़िंदगी कहाँ और कैसे गुजारी है? तुम इतनी मासूम और भोली क्यों है कि कोई भी तुम्हारी इस मासूमियत और भोलपन का नाजायज़ फ़ायदा उठा सकता है? यहाँ भेड़ की खाल में छुपे भेड़िए छुपे हुए। तो फिर मुझे क्या कहना चाहिए था? मिसाल ने मासूमियत से सवाल किया। तुम्हें इस शख्स को कुछ भी नहीं बताना चाहिए था अपने बारे में। अब इसे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है। मुझे वो आदमी ठीक नहीं लग रहा। तुम ऐसा करो कि तुम जॉब ही छोड़ दो। हाँ, मैंने भी यही सोचा है, लेकिन महीना होने वाला है। मैंने इतनी मेहनत से काम किया। बस 3 दिन बाद अपनी मेहनत की पहली सैलरी लेकर इस जॉब को खैराबाद कह दूंगी, हमेशा हमेशा के लिए, और कहीं अच्छी सी जॉब ढूंढ लूंगी। ये मेरी हक हलाल की कमाइयों से ऐसे तो नहीं ना छोड़ सकती। लेकिन मिसाल, मुझे डर लग रहा है उस शख्स से। मिसाल इसके हाथ अपने हाथों में लेती मुस्कुराकर बोली, तुम क्यों डर रही हो? मेरा अल्लाह मेरे साथ कभी भी बुरा नहीं कर सकते। मुझे अपने रब पर पूरा भरोसा है और तुम भी परेशान हो। बस 2-3 दिन की ही तो बात है। अच्छा ठीक है, जैसा तुम चाहो। कस्तूरी मान गई थी। अच्छा चलो, आज हम कहीं बाहर खाना खाना चलते हैं। ओके, और बिल मैं पे करूँगी, कस्तूरी ने कहा। ओके ठीक है, लेकिन पहली सैलरी मिलते ही मैं तुम्हें एक शानदार पार्टी दूंगी। ओके, डन हो गया। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, हम बाहर चलते हैं। मिसाल स्कार्फ को अच्छी तरह से पिनअप करती बिल्कुल तैयार थी और वह कस्तूरी का इंतज़ार कर रही थी। जब कस्तूरी तैयार होकर बाहर निकली तो उसे देखकर एक लम्हे के लिए मिसाल हैरान हुई थी, क्योंकि मामूल के बरक्स कस्तूरी ने सर पर स्कार्फ लिया हुआ था। मिसाल को यूं हैरत से खुद को तकते पाकर कस्तूरी ने पूछा, क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? क्या मैं स्कार्फ में बुरी लग रही हूँ? दरअसल मुझे तुम्हें स्कार्फ पहनते देखकर बहुत अच्छा लगता था, इसलिए मैंने भी आज ये पहन लिया। क्या मुझ पर ये अच्छा नहीं लग रहा? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि तुम तो माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही हो स्कार्फ में। ये सुनकर कस्तूरी खुश हो गई। चलो आओ चलते हैं। दोनों सहेलियां एक दूसरे का हाथ पकड़े बाहर निकल गई। टैक्सी में बैठते हुए ड्राइवर ने पूछा था, कहाँ जाना है मैडम? आप हमें करीबी मस्जिद ले चले। जी। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। मस्जिद क्यों? मिसाल ने गर्दन मोड़कर हैरत से उसे देखा, जिस पर कस्तूरी की मुस्कुराहट गहरी हुई। मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहती थी। मैं इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ। क्या? तुम इस्लाम कबूल करना चाहती हो? कस्तूरी ने सर इस बात में हिलाया। मिसाल की आंखें भर आईं। उसने झट से कस्तूरी को गले से लगाया। मिसाल खुशी से रो पड़ी। तुमने बहुत अच्छा फैसला किया कस्तूरी। मैं हर नमाज में
तुम्हारी हदायत के लिए दुआएं मांगती थी कि अल्लाह ताला मेरी दोस्त को हदायत दें, और मेरी अल्लाह ने मेरी दुआएं सुन ली। कस्तूरी की आंखें भी भीग गई थी। हाँ, शायद तुम्हारे रब ने तुम्हारी दुआएं सुन ली और मुझे हदायत दे दी। मिसाल ने एक बार फिर से उसे गले से लगाया। खुशी ही इतनी थी कि वह बयान नहीं कर सकती थी। थोड़ी देर बाद मिसाल गोया हुई। तुम्हें इस्लाम का शौक कब से शुरू हुआ था? कस्तूरी मुस्कुराई। तुम्हारी इबादत देखकर मुझे शौक पैदा हुआ था। मुझे चर्च में जाकर वो सुकून और खुशी महसूस नहीं होती थी जो तुम्हें नमाज पढ़कर देखकर होती थी। तुम्हें इबादत करते देखकर मेरे अंदर ख्वाहिश जागी थी और फिर मेरा दिल मुतमईन हो गया कि यही सच्चा दीन है, और फिर मैंने इस्लाम कबूल करने का फ़ैसला किया। क्या तुमने अपने वालिदैन को इसके बारे में बताया? नहीं, अभी तो नहीं बताया, लेकिन बहुत जल्द लाहौर जाकर इन्हें बताऊंगी, और मैं कोशिश करूंगी कि इन्हें भी इस्लाम की दावत दूँ और वो इस दावत को कबूल करें। आमीन। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह ताला इन्हें भी हदायत नसीब करें। मिसाल ने उसके वालिदैन के हक़ में दुआ की, जिस पर कस्तूरी ने आमीन कही। फिर वो दोनों करीबी मस्जिद में गए और कस्तूरी जेम्स कलमा शहादत पढ़कर दीन इस्लाम में दाखिल हुई। कलमा पढ़ते हुए कस्तूरी जेम्स अपने जज्बात पर काबू न रख पाई और फूट फूट कर रो दी। ये खुशी के आंसू थे, तशक्कुर के कि वो कलमा पढ़कर दीन इस्लाम में दाखिल हो चुकी थी। वो दुनिया की सबसे बड़ी नेमतों में से एक नेमत इस्लाम को पा चुकी थी। मिसाल उसे गले से लगाए इसकी पीठ आहिस्तगी से थपथपाते हुए उसे मुबारकबाद दे रही थी, और कस्तूरी अपने जज्बात पर काबू न रख पाती रोए जा रही थी। वो अपनी इसी खुशी को अपने अल्फाजों में बयान नहीं कर सकती थी। कस्तूरी का इस्लामी नाम इकरा था। कलमा पढ़ लेने के बाद कस्तूरी का दिल बहुत पुरसकून और मुतमईन था। दोनों मस्जिद से बाहर निकल आई। मिसाल को अपने दोस्त के इस्लाम कबूल करने से बहुत खुशी थी। वो दुआ कर रही थी कि बस इसके माँ बाप इसके लिए कोई परेशानी ना खड़ी करें। काश वो दोनों भी दीन इस्लाम को चुन दे। दूसरे दिन कस्तूरी को लाहौर से कॉल आई थी कि इसकी कज़न की शादी है। इसके वालिदैन ने इसे लाहौर आने का कहा था। कस्तूरी को शादी अटेंड करने लाहौर जाना था। इसने मिसाल से कहा कि वो भी उसके साथ चले, मगर मिसाल ने माजरत करी कि फिर कभी से। कस्तूरी जल्दी वापस आने का वादा करती लाहौर के लिए रवाना हो गई। कस्तूरी के जाने के बाद मिसाल बहुत उदास हो गई थी। अब वो अकेली थी, कोई साथ नहीं था जिसके साथ वो वक्त गुजारती, इसलिए अब वो ज़्यादातर अपना वक्त ऑफिस में काम करके गुजारती थी। ये उस दिन की बात है जब मिसाल को बहुत सारा काम करना पड़ गया था, क्योंकि एक फाइल में उससे कुछ मिस्टेक हो गई थी, जिसे सुधारते सुधारते वक्त का पता ही ना चला और पूरा ऑफिस खाली हो गया। होश तो तब आया जब बहुत देर हो चुकी थी। उसने जल्दी से बिखरी फाइलें समेट कर टेबल पर रखी और बैग उठाकर वो जूं ही जाने को तैयार हुई, मैनेजर ने आकर उसे कहा कि सर आकब उसे अपने कैबिन में बुला रहे हैं, इन्हें एक ज़रूरी बात करनी है। मिसाल को घबराहट हुई। उसने अपने बैग पर अपनी गिरफ्त मजबूत की और अपना लहजा भी मजबूत बनाते बोली, इन्हें कहें कि कल बात करते हैं, मुझे घर जाना है, बहुत देर हो गई है। अगर मैं हॉस्टल वक्त पर ना पहुंचूं तो अंदर नहीं जा पाऊंगी। मिस, सर ने कहा कि बस 5 मिनट की बात है, प्लीज़। उसने आजिज़ी से कहा कि मिसाल ने सोचा कि क्या पता ज़रूरी बात करनी हो। यही सोचती वो आखिर रिजवी के कैबिन में चली आई, और यही सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी इसकी। सर मैं आई कम इन? मिसाल ने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। यार प्लीज़ कम इन, आकिब ने उसे अंदर आने का कहा। मिसाल आहिस्तगी से चलती हुई अंदर आई। जी सर, आपने बुलाया था? हाँ मिस, प्लीज़ सिट डाउन। आकिब रिजवी चेयर के साथ टेक लगा उसे सामने रखी कुर्सी पर बैठने का कहा। मिसाल को झिझकी, फिर हिम्मत करते हुए बोली, नो थैंक्स सर, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं लेट हो रही हूँ। प्लीज़ आपको जो कहना आप कहें, मुझे हॉस्टल भी पहुँचना है। आकिब रिजवी इसकी झिझक को अच्छी तरह से समझ गया था। इसके होंठों पर कमीनी सी मुस्कुराहट दौड़ गई। वो पेन को दोनों उंगलियों में घुमाता सामने खड़ी घबराहट से अपनी उंगलियां चटकाती मिसाल को देख रहा था। तभी मैनेजर आरिफ कैबिन में दाखिल हुआ और दरवाज़ा लॉक कर दिया। मिसाल घबरा कर पीछे मुड़ी, देखा तो मैनेजर आरिफ था, जो बड़ी कमीनगी से अपने बास को देखकर मुस्कुरा रहा था। मिसाल को अपने इर्द गिर्द खतरे की घंटियां बजती हुई महसूस हुई। वो अब इतनी बच्ची भी नहीं थी कि बंद दरवाजे का मतलब न समझ पाती। मिसाल का दिल उछल कर हलक में आ गया। वो खौफजदा सी होकर बोली, सर आपने डोर लॉक क्यों किया है? मिस मिसाल, अब आप इतनी बच्ची भी नहीं है कि बंद दरवाजे का मतलब न समझे। सर आप होश में तो हैं? क्या कह रहे हैं आप? हाँ सही कहा तुमने, तुम्हारा ये हुस्न और मासूमियत देखकर मैं अपने होश हवासी खो बैठा हूँ। तुम्हारे शौहर ने तुम जैसी खूबसूरत बीवी को घर से बाहर निकाल दिया बगैर उसे छुए। कितनी बुरी बात है ये, लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे इस हुस्न को ज़रूर सराहूँगा। ये कहकर आकर वैसे में अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और आहिस्तगी से कदम उठाता उसकी तरफ बढ़ने लगा। मिसाल ने अपने बैग पर गिरफ्त मजबूत की और डर कर पीछे को होने लगी। जब सर
सर, जब आप इस हुस्न को मुकम्मल तौर पर सराहें तो प्लीज़ हमें भी इस हुस्न को सराहने का एक मौका ज़रूर देना। हाँ हाँ ज़रूर, मेरा झूठा हमेशा तुम्हें ही तो खाने को मिलता है। आकिब रिजवी हंसकर बोला। बस फिर मैनेजर साहब ने भी कहा लगा। मिसाल की आंखों से आंसू छलक पड़े। खुदा का खौफ करें सर, क्या आपके घर में माँ बहन नहीं है? ओहो, आकिब रिजवी ने सर नफ़ी में हिलाते कहा। नहीं है ना, तभी तो दूसरों की बहन बेटियों को निशाना बनाता हूँ। ये कहकर आकिब हंसा तो मैनेजर आरिफ ने भी इस कहकहे में उसका साथ दिया। सर, खुदा के लिए मुझे जाने दीजिए, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, आपको अपने रब का वास्ता है। हाँ, तुमसे पहले इन लड़कियों ने भी यही कहा था। जब मैंने इनकी इज्जत तार तार कर दी तो फिर वो खुद ही चली आती थी मेरी एक धमकी पर। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करूँगा, और तुम जैसे शरीफ सादी भी मेरी एक पुकार पर मेरा दिल बहलाने भागी आएगी मेरे पास। आपने गलत अंदाज़ा लगाया, मैं इन जैसी लड़कियों में से हरगिज़ भी नहीं हूँ। ओह अच्छा, आकिब चौंकने की एक्टिंग करते हुए बोला। तो फिर हमें देखना ही पड़ेगा कि तुम कैसी लड़की हो। ये कहकर आकिब ने दीवार से लगी खड़ी डरी सहमी अपनी इज्जत की भीख मांगती मिसाल के सर से बेदर्दी से दुपट्टा खींचा। मिसाल के सर से दुपट्टा ढलक कर इसके कंधों पर आ गिरा था। ऐसी बेआबरू, मिसाल की चीख बुलंद हुई। आज तक अपने घर में नंगे सर नहीं घूमी थी और इस वहशी इंसान ने इसके सर से दुपट्टा उतारकर उसे बेआबरू किया था। मिसाल ने पूरी ताकत के साथ सामने खड़े आकिब रिजवी को धक्का दिया। आकिब इस धक्के के लिए बिल्कुल भी तैयार न था। वो अपना तवाज़ुन बरकरार न रख पाता सीधा मेज से जा लगा। मिसाल अपना दुपट्टा सर पर रखती तेजी से दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन दरवाजे पर खड़े मैनेजर को गमगीनगी से मुस्कुराते देखकर मिसाल ने पूरी कुव्वत से अपना बैग इसके चेहरे पर दे मारा। वो अपनी आंखों पर हाथ रखे दर्द से बिलबिला उठा। मिसाल के पास ये बेहतरीन मौका था यहाँ से भाग जाने का, लेकिन वो दोनों तो अपने शिकार को फांसने की पूरी तैयारी कर चुके थे। बाहर जाने के सभी दरवाजे बंद थे। वो पूरे ऑफिस में मदद के लिए चीखती फिर रही थी। वो दोनों वहशी इज्जत के लुटेरे इसके पीछे पीछे भाग रहे थे। थक कर वो खुद को महफूज रखने के लिए ऑफिस के किचन में आ छुपी। वो दोनों इसे पूरे ऑफिस में पागलों की तरह ढूंढ रहे थे, क्योंकि इनका शिकार खो चुका था। वो आज की रात इन्हें शिकार किए बगैर नींद नहीं आने वाली थी। वो दोनों एक दूसरे के गुनाहों से खूब आगाह और एक दूसरे के राजदार थे। वो दोनों मिलकर ऐसी मजबूर और मासूम लड़कियों का शिकार करते और शिकार को आधा आधा तकसीम कर लेते। मिसाल टेबल के नीचे छुपी डरी सहमी सी बैठी थी। आंसू फिसलकर इसके गालों पर बहते चले जा रहे थे। मेरे अल्लाह, मुझे बचा ले, मैंने कभी किसी के साथ कुछ भी बुरा नहीं किया। ऐ समीउल बसीर, मैं इस वक्त इन वहशियों के चुंगल में फंस गई हूँ। ऐ यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से महफूज निकालने वाले रब, मुझे भी यहाँ से महफूज निकाल। मेरे लिए मेरी इज्जत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अगर मेरी इज्जत मेरे पास नहीं रहती तो मुझे अभी की अभी मौत दे दे मेरे रब। वो गिड़गिड़ा कर अपने प्यारे रब से दुआएं मांग रही थी, और वो रब जो 70 माओं से बढ़कर प्यार करता है। इसकी हिचकियाँ बंद गई थी। तभी वो दोनों दरिंदे से ढूंढते हुए किचन तक आ गए। इन्हें देखकर मिसाल की आंखें खौफ से फैल गईं। उसने अपने मुंह पर दोनों हाथ रखकर अपनी हिचकियों का गला घूंटा। मिसाल, मिसाल कहाँ हो तुम? मिसाल, आकिब रिजवी से आवाज़ें लगा रहा था। मिसाल कहाँ छुपी हुई हो? बाहर आ जाओ ना, देखो बहुत हो गया ये हाइड एंड सीक खेलना। चलो अब बाहर निकल आओ, मुझसे और इंतज़ार नहीं होता। मिसाल ने दोनों हाथ होंठों पर मजबूती से रखे अपनी सिसकियों को रोकने की कोशिश की। आंसू फिर भी पलकों की बात तोड़कर हाथों पर गिर रहे थे। इस वक्त इन दोनों के रहमो करम पर थी। अगर इसकी इज्जत आज चली गई तो फिर वो कभी भी सर उठाकर जी नहीं पाएगी। रोते हुए इसके दिल से तंजीर और शमाइला के लिए बद्दुआ निकल गई, और ये दिखी दिल की बद्दुआ थी जो अर्श पर जा पहुंची थी। तंजीर, ये सब आप दोनों की वजह से हो रहा है। आप लोगों ने मुझे घर बदर कर दिया और मुझे आज अपनी बचाने के लिए यहाँ पर छुपना पड़ रहा है। मैं आप लोगों को कभी माफ़ नहीं करूँगी। आप लोगों की वजह से मुझे ये इक़दाम उठाना पड़ रहा है। इस इक़दाम से मेरे अल्लाह मुझसे नाराज़ हो जाएगा। ये सोचकर आंसुओं में तेज़ी आ गई। उसने सोच लिया था कि उसे क्या करना है, क्योंकि वो बिल्कुल ही बेबस हो गई थी। बचने का कोई और रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा था। अब निकल आओ ना प्लीज़, क्यों सता रही हो मुझे? आकिब रिजवी किचन में चारों तरफ निगाहें दौड़ाते हुए बोला। तभी टेबल के नीचे से नजर आते मिसाल के दुपट्टे पर इसकी निगाह पड़ी तो वह हंस दिया। आहिस्ते से चलता हुआ वो अचानक इसके सामने आया, जिस पर मिसाल के मुंह से खौफनाक चीख निकली। आकिब ने झुककर इसका दुपट्टा इसके वजूद से खींच लिया था। मिसाल को लगा कि इसकी रूह भी इसके जिस्म से खींच ली गई है। आकिब रिजवी ने दुपट्टे को नाक से लगाकर गहरी सांस लेकर इसकी खुशबू अपने अंदर उतारी। तुम्हारी खुशबू बहुत उम्दा और खूबसूरत है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। ये कहता आकिब आहिस्तगी से उसकी तरफ बढ़ने लगा। बस बहुत भाग लिया तुमने मिसाल मैडम, अब तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता। आकिब रिजवी इसका दुपट्टा हाथों में लपेटते बोला।
अब तुम मेरी दस्तरस में और तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचाएगा, कोई भी नहीं। भूल है तुम्हारी कि मुझे कोई भी नहीं बचाएगा। मेरा अल्लाह मुझे बचाएगा जिसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाला था। इसी तरह वो मुझे भी इस गलाजत भरे कुएं से निकालेगा। अच्छा, आकिब रिजवी ने इसकी बात सुनकर कहकहा लगाया। इसी वक्त मैनेजर आरफ भी वहाँ पर चला आया। चलो आरफ, पकड़ो इस चिड़िया को, बहुत टफ टाइम दिया इसने। उस शक्ल तो से तो बहुत मासूम लगती थी। सोचा कि आसानी से शिकार कर लूँगा, लेकिन बहुत दौड़ाया इसने हमें, और अब इसकी सज़ा भी मिलेगी, और वो भी डबल, दिल बहलाने के साथ और सताने की भी मज़े। आकिब रिजवी ने कहकहा लगाया और इस कहकहे में मैनेजर ने भी इसका साथ दिया। दोनों दरिंदे इसके पास आने लगे। मिसाल खौफसदा होती पीछे को होती चली गई। ए रब्बिल आलमीन, मुझे बचा ले, मैं ऐसी भरी ज़िंदगी नहीं जीना चाहिए। मुझे अभी की अभी मौत दे दे मेरे प्यारे रब। वह दिल ही दिल में बेहरबान रब को पुकार रही थी। मिसाल पीछे हटते हटते स्लैब से जा लगी, तभी इनकी निगाह सामने रखी छुरी पर पड़ी थी। उसने कुछ सोचकर जल्दी से छुरी उठा ली। उसे छुरी उठाते देखकर आकिब हंसा। तुम मुझे इस छुरी से डराने की कोशिश कर रही हो कि मैं इस छुरी से डरकर अपने शिकार से पीछे हट जाऊंगा? भूल है ये तुम्हारी। मेरी ताकत के सामने तुम एक फड़फड़ाती मासूम सी चिड़िया हो। मिसाल ने आंसू भरी आंखों से इन दोनों दरिंदों को देखा जो इसे नोच खाने के लिए उतावले हो रहे थे। कांपते हाथों में पकड़ी छुरी पर इसकी गिरफ्त मजबूत हुई और इसने छत की तरफ अपना चेहरा उठाया और अपने रब से रोते हुए फरियाद की। मेरे मालिक, मुझे माफ़ कर देना, मैं बहुत मजबूर होकर यह कदम उठा रही हूँ। मुझे तेरे बंदों ने बहुत सताया। मैं क्या करूँ, मेरे पास इस रास्ते के सिवा और कोई रास्ता नहीं मिला। मैं बहुत बुरी हूँ मेरे अल्लाह जी। मैं इन वहशी दरिंदों से अपनी इज्जत बचाने के लिए हराम मौत को गले लगा रही हूँ। मुझे माफ़ कर देना मेरे प्यारे रब। ये कहती मिसाल ने हाथ में पकड़ी छुरी अपने पेट में घोंप दी। मुझे दोनों यही समझ रही थी कि लड़की इनको छुरी से मारना चाहती है, लेकिन वो लड़की इनकी सोच के बरक्स निकली। उसने अपनी जान लेने की कोशिश की थी। हाँ, वो दोनों इस लड़की को ठीक से समझ ही नहीं पाए थे। मिसाल नीचे को गिर गई। खून तेजी से किचन के फर्श पर गिरता उसे रंगीन करता लगा। ये देखकर वो दोनों घबरा गए। ये क्या कर दी इसने? अब क्या करें? अगर पुलिस आ गई तो हम फिर दोनों बच ही नहीं पाएंगे। आकिब रिजवी जितना कमीना इंसान था, इतना ही डरपोक और बुज़दिल दिल था। उसने हमेशा से लड़कियों के खौफ से फ़ायदा उठाया था, लेकिन आज इसका पाला एक बहादुर लड़की से पड़ा था जिसने अपने इक़दाम से उसे खौफज़दा कर दिया था। अब क्या करें सर? मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर हम किसी की निगाहों में आ गए तो बहुत बुरा होगा। पूरी ज़िंदगी जेल में गुजारनी पड़ेगी हमें। मैनेजर आरिफ भी बहुत खौफज़दा हो गया था। नहीं, ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। हमें कुछ करना ही होगा। आकिब अपने चेहरे पर हाथ फेरते बोला। उसे जल्दी से गाड़ी में डालो और कहीं सड़क पर फेंकाओ। अगर ये किसी गाड़ी के नीचे आकर कुचली जाती है तो ये एक्सीडेंट माना जाएगा और किसी को हमारे बारे में शक भी नहीं होगा। हाँ, ये सही कहा आपने। आरिफ ने आकिब के इस प्लान को सराहा। हमें ऐसा ही करना होगा। फिर उन दोनों ने मिसाल को गाड़ी में डाला और इसे ले जाकर एक सुनसान सड़क पर बीच रास्ते में फेंक दिया कि अगर कोई गाड़ी आई तो सीधा इसे कुचलकर निकल जाएगी और यूँ वो दोनों बच भी जाएंगे। लेकिन वो शायद भूल गए थे कि ऊपर एक गवाह मौजूद है जो उनकी सारी कार्रवाई देख रहा था। उसने इन सालमों की रस्सी अभी ढीली कर रखी थी। शायद वो भूल गए थे कि ये दुनिया मकाफाते अमल है। अगर किसी को रुलाया है तो खुद को भी रोना पड़ेगा। अपना काम करके वो दोनों वहाँ से ऑफिस भागे, क्योंकि वहाँ भी तो सारे सबूतों को मिटाना था। सड़क पर आखिरी सांसें लेती मिसाल ने ज़रा सी आंखें खोलकर आसपास देखा। ये बिल्कुल सुनसान सड़क थी जहाँ किसी ज़रूर का नामो निशान तक न था। एक जख्मी सी मुस्कुराहट इसके नभों पर आई और वो अपनी आंखें मूंद गई। शायद उसे यकीन हो चला था कि ये इसका वक्त रुखसत है, लेकिन उसे खुशी इससे ज़्यादा इस बात की थी कि वह अपनी इज्जत बचाने में कामयाब रही थी। आज़र और मीरम ने आज शॉपिंग का प्लान बनाया था। अभी वो गाड़ी में बैठे ही थे कि इनका चौकीदार नूर बाबा भागते हुए आज़र के पास आया। छोटे साहब। आज़र जो गाड़ी स्टार्ट करने लगा था, आवाज़ सुनकर उसने गाड़ी का शीशा नीचे किया तो बाहर नूर बाबा खड़े थे। अरे नूर बाबा, आप सब खैरियत है? जी साहब, सब खैरियत है। बस आपका शुक्रिया अदा करना था। अच्छा, आपकी बेटी की शादी हो गई? जी छोटे साहब, शादी खैर से हो गई। ये सब आपकी मेहरबानी और मदद की वजह से मुमकिन हुआ है, वरना मुझ गरीब की इतनी हैसियत कहाँ थी। मेरी बीवी और बेटी आपको बहुत सारी दुआएं दे रही थी। ये सुनकर आज़र खुश हुआ। नूर बाबा, अगर आइंदा भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिला झिझक मुझसे बात कर सकते हैं। मैं आपकी मदद कर दूँगा। मुझे आप अपना बेटा ही समझे। बहुत शुक्रिया बेटा। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, दोनों जहाँ की खुशियाँ नसीब करे आपको। अल्लाह ताला आपको मज़ीद नवाजे। आमीन आमीन। आज़र ने इनकी दुआ पर आमीन कही। मैं गेट खोलता हूँ जाकर। ये कहकर नूर बाबा जल्दी से जाकर गेट खोलने लगा। गाड़ी घर से बाहर निकली तो मीरम, जो कब से आज़र को घूरे जा रही थी, बिलाखिर फट पड़ी।
तुम्हें तो मदर टेरेसा का अवार्ड मिलना चाहिए यार। वो किस लिए? गाड़ी ड्राइव करते आज़र ने सर घुमाकर उसे देखा। हर किसी की मदद का ठेका जो उठा रखा है तुमने, सारे फ्रेश मूड का सत्यानाश कर दिया तुमने। और तुम्हारे इन गरीब दोस्तों ने, तुम्हें दोस्ती के लिए मिले भी यही गरीब लोग थे। मीरम के लहजे में हकारत का अंसर था। आखिर तुम्हें इन बेचारे गरीब लोगों से क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है, लेकिन तुम नहीं समझ सकते मिस्टर आज़र मकसूद नकवी। और प्लीज़ अब खामोश होकर ड्राइविंग पर अपना फोकस रखो। मैं इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहती। ये कहकर मीरम खफकी से चेहरा खिड़की की तरफ फेर गई। ओके, एज यू विश, आज़र कंधे उचकाते हुए बोला। थोड़ी देर बाद वो मुल्क के एक मशहूर शॉपिंग मॉल के सामने खड़े थे। ये शॉपिंग मॉल एक मशहूर बिजनेसमैन हशाम मालिक की मलकियत था। मुल्क के कई शहरों में इसके शॉपिंग मॉल्स थे। इनके डिज़ाइन करने ड्रेसेस पाकिस्तान के साथ साथ बैरून मुल्क में भी बहुत मशहूर थे। वो HM बिल्डिंग्स और HM शुगर मिल्स का मालिक था। इसकी सिर्फ एक बेटी थी जिसका नाम कोमल हशाम मालिक था। कोमल 4 साल की थी जब हशाम मालिक अपनी बेटी प्यारी बेगम के साथ एक डिनर पार्टी से वापस घर आए थे, जब इनकी गाड़ी का एक खौफनाक एक्सीडेंट हुआ। इस हादसे में हशाम मालिक ने अपनी बीवी और कोमल ने अपनी माँ को खो दिया था। इस हादसे ने कोमल के जहन पर बहुत गहरा असर डाला। उस हादसे की वजह से वो हर वक्त खौफज़दा रहने लगी, बार बार अपनी माँ को पुकारती। बैठे बैठे अचानक से तबीयत बिगड़ती, उसे वशी के दौरे पड़ते और अचानक से इसका सांस बंद होने लगता। हशाम मालिक को अपनी बेटी से बेइंतहा मोहब्बत थी। उसने अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क सभी डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कोमल की बीमारी इनको समझ नहीं आ रही थी। न जाने क्या वजह थी, या फिर शायद वो खुद ठीक नहीं होना चाहती थी। वो बार बार अपनी माँ को याद करती और फूट फूट कर रो पड़ती। अपनी बेटी को यूं रोते देखकर अरबपति हशाम मालिक का अपना दिल दर्द से भर जाता। न जाने इसकी बेटी कब और कैसे ठीक होगी। कोमल में इसकी जान बसती थी। इस दुनिया में बस एक वही थी जिससे उसे बेइंतहा मोहब्बत थी। 10 साल हो चुके थे और आज तक वो अपनी बेटी की ये तकलीफ बर्दाश्त कर रहा था। कोमल बाकी नॉर्मल बच्चों की तरह अपना बचपन नहीं गुजार पाई थी। वो हर वक्त खौफ और दहशत के साए में रही थी। डरती थी कि कहीं किसी दिन इसके साथ या फिर इसके पापा के साथ वो कुछ न हो जाए जो इसकी मामा के साथ हुआ। वो बहुत हसास और छोटी छोटी बातों पर डर जाती थी, इसलिए हशाम मालिक हर वक्त उसे अपने साथ रखते थे। लेकिन बचपन में हुए इस वाक़ये के बाद इसकी बेटी ना ज़्यादा बोलती और ना ही हंसती थी। उसकी इस हालत की वजह से उसके कोई दोस्त भी नहीं थे। हशाम मालिक इसके लिए बहुत परेशान थे। इसकी माँ की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उन्होंने एक के बाद दीगरे 3 शादियाँ भी की, लेकिन इनका रवैया कोमल के साथ बहुत बुरा था। उसे वो प्यार ही नहीं दिया जिसके लिए वो तड़पती थी। हशाम मालिक ने घर में लगे खुफिया कैमरों से इनकी सारी मशकूक हरकत को नोटिस किया और फिर तीनों को ही डिवोर्स के साथ सजा भी देकर हशाम मालिक ने अपनी ज़िंदगी और घर से रुखसत कर दिया, क्योंकि वो कोमल की माँ बनने नहीं बल्कि इस घर की और हशाम मालिक की मलकियत मालकन बनने आई थी। बहुत कम लोग जानते थे कि हशाम मालिक एक खामोश गैंगस्टर भी था, क्योंकि इसकी कामयाबी की वजह से इसके बहुत सारे दुश्मन भी थे। अगर कभी किसी को मारना हो या फिर किसी की वजह से अपनी बेटी या फिर अपनी जान को खतरा महसूस होता, तो अपने गुंडों के जरिए वो इन्हें मरवा देता। लोग इन्हें शरीफ गुंडे के नाम से भी पुकारते थे। हशाम मालिक और मकसूद नकवी में बहुत अच्छी दोस्ती थी। दोनों बिजनेस पार्टनर थे और मकसूद नकवी की फैमिली हमेशा इनके शॉपिंग मॉल से ही शॉपिंग करने जाती थी। मिसाल जो समझ रखी थी कि वो मर चुकी है, लेकिन शायद किस्मत में अभी इसका मरना नहीं लिखा था। अभी ज़िंदगी ने उसे मज़ीद आज़माइशों से गुजारना था। इत्तेफाक से हशाम मालिक अपनी बेटी के साथ एक पार्टी से वापस घर जा रहे थे कि रास्ते में अचानक से इनकी निगाह सड़क पर पड़ी। कोई सड़क पर जख्मी पड़ा था। पापा, वहाँ कोई है? हसास कोमल ने जब किसी को सड़क पर गिरे देखा तो बोल पड़ी। पापा, इसको जाके देखें, क्या वो जिंदा है? ठीक है बेटा, चल चल के देखते हैं। वो दोनों गाड़ी से बाहर निकल आए। हशाम मालिक ने उसे देखा। वो एक लड़की थी जो शदीद जख्मी थी। इसका खून सड़क पर फैल चुका था। हशाम मालिक ने झुककर इसकी नब्ज चेक की जो बहुत धीमी चल रही थी। पापा, क्या ये जिंदा है? हाँ बेटा, ये जिंदा है। पापा प्लीज़ इसे बचा लें, इसे अस्पताल ले जाएं, वरना ये भी मामा की तरह मर जाएंगी। प्लीज़ पापा। कोमल की ये हालत देखकर हशाम मालिक ने उसे पुरसकून किया। ठीक है बेटा, हम इसे अस्पताल ले चलते हैं, परेशान मत हो। हशाम मालिक ने अपना कोट उतार कर इसके ऊपर डाला जो बिना दुपट्टे के यहाँ पड़ी थी। फिर इसे बाहों में उठाए वो गाड़ी तक लाया और पिछली सीट पर डालकर उन्होंने ड्राइविंग सीट संभाल ली। अब वो पूरे स्पीड के साथ गाड़ी ड्राइव कर रहा था। कोमल बार बार पीछे देखती। पापा, ये बच तो जाएंगी ना? हाँ बेटा, ज़रूर, आप बस दुआ करो। कोमल दोनों हाथ जोड़े दुआ मांगने लगी। हशाम ने पहली बार कोमल को किसी के लिए यूँ परेशान और इसकी ज़िंदगी के लिए दुआ मांगते देखा था। वो होले से मुस्कुराई। अस्पताल पहुँचते हशाम मालिक ने मिसाल को अपनी बाहों में उठाया, तेज़ी से अंदर की तरफ भागा।
डॉक्टर हशाम मालिक को देखते ही फ़ौरन से पहचान गए थे। जल्दी से स्ट्रेचर लाया गया और ज़ख्मी मिसाल को आईसीयू ले गए। हशाम मालिक ने डॉक्टर से कहा कि जैसे भी करके इस लड़की की जान बचाए। इसके इलाज में जितना भी पैसा खर्च आए वो खुद उठाएगा। बस उसे ज़िंदा रहना चाहिए, क्योंकि वो अपनी बेटी को दोबारा से इस तकलीफ़ से गुजरते हुए नहीं देखना चाहते थे जिससे वो 10 साल पहले गुजरी थी। बाहर गाड़ी में बैठी कोमल परेशान हो रही थी। हशाम मालिक गाड़ी में आकर बैठे। इनकी सफ़ेद शर्ट मिसाल के खून से सुर्ख हो चुकी थी। पापा क्या हुआ? क्या वो बच गई? नहीं बेटा, अभी डॉक्टर से इलाज कर रहे हैं। तो फिर पापा हम कहाँ जा रहे हैं? अपने बाप को गाड़ी स्टार्ट करते देखकर वो बोल पड़ी। हमें इनके साथ यहीं रहना चाहिए। हाँ बेटा, मैं आपको घर ड्रॉप करने के लिए जा रहा हूँ। मुझे शर्ट भी बदलनी है, ये ख़राब हो चुकी है। कोमल ने अपने बाप की शर्ट को देखा जिस पर जगह जगह खून के धब्बे पड़े थे। लेकिन पापा, मुझे यहाँ इनके पास रहना है। नहीं बेटा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। यहाँ बहुत भीड़ है और आपको भीड़ से बहुत डर लगता है। आप घर जाएं, मैं इनके साथ यहीं पर ही हूँ। फिर आप सुबह ड्राइवर के साथ इन्हें देखने चली आना। ओके, हशाम मालिक ने इसे समझाया। कोमल बड़ी मुश्किल से मानी थी और यही पहली बार था कि इसकी बेटी ने किसी बात पर उनसे ज़िद की थी और हशाम मालिक को अच्छा भी लगा था अपनी बेटी को यूँ नॉर्मल बच्चियों की तरह बात करते और ज़िद करते देखकर। शायद ये पॉजिटिव साइन था। क्या पता इस हादसे से इनकी बेटी फिर से पहले जैसी नॉर्मल बन जाए। यही सोचते हुए उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की। कोमल को आया के पास छोड़ा, खुद नहाकर कपड़े बदले और अस्पताल रवाना हुए। यह सब वो मिसाल के लिए नहीं बल्कि अपनी बेटी की खुशी के लिए कर रहे थे, क्योंकि इसकी बेटी ने पहली बार इससे कोई फरमाइश और ख्वाहिश की थी, वरना वो तो ऐसा इंसान था जैसे अपने बेटी के सिवा किसी की भी कोई परवाह नहीं थी। पूरी रात वो अस्पताल में रहे। मिसाल का खून काफ़ी बह चुका था, जिसकी वजह से इन्हें ब्लड का भी बंदोबस्त करना पड़ा। भागदौड़ की वजह से काफ़ी थक गया था। नींद की वजह से इसकी आंखें बंद हो रही थी। फजर की अजान हुई तो डॉक्टर ने इन्हें खुशखबरी सुनाई कि इनके पेशेंट की ज़िंदगी अब खतरे से बाहर है। उसके मुंह से बेख्तियार शुक्र का कलमा अदा हुआ। वो खुद भी नहीं जानता था कि किसी गैर लड़की के जिंदा होने पर वो क्यों खुश हो रहा है, लेकिन शायद वो ये सब अपनी बेटी के लिए कर रहा था। वो काफ़ी थक चुके थे। अब जबकि इसकी लड़की की हालत बेहतर थी तो वो आराम करने के लिए घर रवाना हो गए। हशाम मालिक जब घर पहुंचे तो उन्होंने कोमल को मामूल के बरक्स इतनी सुबह जागते हुए पाया। बेटा, आप सोई नहीं क्या? नहीं, मैं सोई थी बट आंख जल्दी से खुल गई। आप बताएं, आप हॉस्पिटल से क्यों आए और इनकी तबीयत कैसी है? आप बेटी को आज इतने सालों बाद इतनी ज़्यादा बातें करते देखकर इन्हें बहुत खुशी हुई थी, वरना तो वो एक दो लफ्ज़ बोलने के बाद खामोशी हो जाती थी। हशाम मालिक घुटनों के बल इसके सामने बैठ गए। इसके दोनों बाजुओं से थामकर इसकी पेशानी को चूमते उसे सीने से लगाकर बोले, आप परेशान ना हो बेटा, अब वो बिल्कुल ठीक है। इनकी हालत अब खतरे से बाहर है। सच में? कोमल बेख्तियार मुस्कुराई थी। हशाम मालिक ने पहली बार इसके होंठों पर मुस्कुराहट देखी थी। क्या वो अब बिल्कुल ठीक है? हाँ बेटा, अब वो बिल्कुल ठीक है। तो फिर हम इनसे मिलने कब जाएंगे? दोपहर को चलते हैं फिर। मैं पूरी रात सो नहीं पाया बेटा, थोड़ी देर आराम कर लो फिर चलेंगे साथ। ओके पापा। कोमल खुश होती अपने कमरे की तरफ भाग गई और हशाम मालिक ने पहली बार अपनी बेटी को यूं खुश होते देखा था। यकीनन इस लड़की में कुछ तो खास है जो मेरी बेटी इतने सालों बाद मुस्कुराई है। हशाम मालिक सोच में पड़ गए थे। वो लड़की अब इनके लिए बहुत ख़ास बन गई थी, क्योंकि जो काम डॉक्टर ना कर सके थे वो इस ज़ख्मी और बेहोश लड़की ने कर दिखाया था। वो यही सोच रहे थे कि न जाने इसके साथ ये सब किसने किया, न जाने कौन था वो जिसे ज़ख्मी करके सड़क पर यूं बेआबरू करके छोड़ गया था। ये तो अब लड़की के जागने के बाद ही पता चलने वाला था। हशाम मालिक कोमल के साथ मिसाल को देखने अस्पताल आए थे, लेकिन मिसाल अभी तक बेहोश थी। मिसाल को देखते हुए अपने पापा का हाथ पकड़ कोमल गोया हुई। पापा? हाँ बेटा। इन्हें किसने मारा था? पता नहीं बेटा, अभी तक तो पता नहीं चला। जब ये जागती हैं तो फिर हम पूछ लेंगे इनसे। हशाम मालिक कोमल का हाथ पकड़े मिसाल के पास चले, जो होशो खुद से बेगाना अभी तक बेहोश पड़ी थी। कोमल के साथ अब हशाम मालिक भी बेहोश पड़ी मिसाल को देख रहा था। वो लड़की बहुत मासूम और बेइंतहा हुस्न की मालिक थी। कोमल की मामा के बाद ये पहली लड़की थी जिसे हशाम मालिक ने दिल खोल कर देखा था। इनके पास इंसानों को परखने का तजुर्बा था। वो उसे देखते ही पहली निगाह में समझ गए कि ये लड़की बहुत मासूम है। यकीनन किसी ने इसकी मासूमियत का नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश की थी। अभी तक इस लड़की के घर वालों का कुछ अता पता नहीं चला था। हशाम मालिक ने सोच लिया था कि जब तक इसकी फैमिली का पता नहीं चलता वो इसे अपने साथ अपने घर ले जाएगा। अब वो इसे यूं बेयार मददगार तो नहीं छोड़ सकता था। हशाम उसे ही देख रहे थे जब कोमल आगे बढ़कर इसके सर पर होले से हाथ फेरने लगी। हशाम मालिक अपनी बेटी को देखकर मुस्कुराए। तभी मिसाल के जिस्म ने जुम्बिश की। पापा, उन्होंने अभी हरकत की। कोमल खुशी से चिल्लाई। हाँ बेटा, मैंने भी देखा।
मिसाल ने आहिस्तगी से अपनी आंखें खोली तो खुद को अजनबी जगह पर पाया। वो जल्दी से घबरा कर उठने ही लगी कि हसाम मालिक ने जल्दी से आगे बढ़कर उसे बाजुओं से थाम लिया, जो अपने हाथ में लगी ड्रिप को उतार फेंक कर यहाँ से भागना चाह रही थी। छोड़ो मुझे, छोड़ो, मिसाल इसे खुद से दूर करने लगी। जाने दो मुझे, मत छुओ मुझे, मैं खुद को मार डालूंगी। ये आप क्या कर रही हैं? होश में आए। हसाम मालिक ने झंझोड़ने पर मिसाल ने सर उठाकर आंसू भरी आंखों से उसे देखा। वो आदमी इसके लिए अजनबी था और पास खड़ी वो 14 साल बच्ची जो इसे ही देख रही थी। मिसाल सहम गई और बेड की सफ़ेद चादर से खुद को कवर करने लगी। आप डरे मत, आप यहाँ पर बिल्कुल सेफ हैं। कोई आपको कुछ भी नहीं कह रहा। प्लीज़ रिलैक्स। हसाम के कहने पर वो आहिस्ता आहिस्ता पुरसकून हुई थी, लेकिन वो देख सकते थे कि वो लड़की अभी भी बहुत डरी हुई थी। मिसाल हिम्मत करते हुए गोया हुई। मुझे यहाँ कौन लाया है? मैं लाया था आपको। आप सड़क पर ज़ख्मी हालत में पड़ी थी। मिसाल ये सुनकर मिसाल की आंखों के गिर्द एक बार फिर से वो मंजर घूम गया। मिसाल घुटनों में सर दिए बिलक बिलक कर रो दी। कोमल ने बाप को देखा। पापा, ये क्यों रो रही हैं? क्या ये बहुत हर्ट हुई है? हाँ बेटा, शायद कुछ ऐसा ही है। आओ चलो बेटा, हम घर चलते हैं। मिसाल की इस हालत को देखते हुए हशाम मालिक ने कोमल को ले जाना ही मुनासिब समझा था, क्योंकि वो इसके सामने मिसाल से इस बारे में बात नहीं कर सकते थे। लेकिन मुझे पापा इनके साथ रहना है। बेटा, अभी इनकी कंडीशन नहीं ठीक है, फिर मिल लेना ना इनसे। आओ चलो मेरे साथ। हशाम मालिक कोमल को लेकर वहाँ से चले गए। पीछे मिसाल के रोने में शिद्दत आ गई थी। गाड़ी ड्राइव करते पूरे रास्ते हशाम मालिक यही सोचते रहे कि यकीनन इस लड़की के साथ बहुत बुरा हादसा है, जिससे वो खौफजदा हो गई है। वो जानता था कि अभी वो कुछ नहीं बताएगी, लेकिन वो जानना चाहते थे कि आखिर इसके साथ हुआ क्या था और इसकी फैमिली कहाँ है। शक्ल से तो वो मासूम ही लगी थी। फिर ये मामूल का रहने लगा। दिन में 2 बार हशाम मालिक कोमल को मिसाल से बनाने ले आता है। कोमल कभी इसके लिए फूल तो कभी चॉकलेट ले आती। आहिस्ता आहिस्ता मिसाल ने समझने लगी। वो दोनों बाप बेटी इसकी फ़िक्र करते थे, वरना इस दुनिया में कौन ऐसे लोग थे जो अपना कामकाज छोड़कर किसी और के लिए वक्त निकाल कर उसकी खैरियत पूछने हर रोज़ आएँ। हशाम मालिक के कहने पर उसे अस्पताल में हर आसाइश मुहैया की गई थी। 1 हफ्ता हो चुका था। मिसाल अब बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। इन दोनों बाप बेटी का रवैया इसके साथ बहुत प्यार भरा और दोस्ताना था। मिसाल इन दोनों की बहुत शुक्रगुजार थी। वो चाहकर भी इन दोनों का ये एहसान नहीं उतार सकती थी। इन दोनों ने बिना किसी गर्ज से इसकी मदद की और देखभाल की थी। इसे ना चाहते भी वो इन पर भरोसा करने लगी थी। वो जो सोच चुकी थी अब किसी पर भरोसा नहीं करेगी, लेकिन एक बार फिर से किसी पर भरोसा कर बैठी थी, क्योंकि वो दोनों बाप बेटी से बुरे इंसान बिल्कुल भी नहीं लगे थे। वो दोनों जब भी मिसाल को देखने आते तो मिल बैठकर घंटों बातें करते। मिसाल ज़्यादातर खामोश रहती थी। एक दिन बातों ही बातों में हशाम मालिक ने मिसाल को कोमल के बारे में सब कुछ बता दिया। कोमल के बारे में सुनकर मिसाल को बहुत दुख हुआ था। इस छोटी सी उम्र में उसे क्या कुछ देखने को मिला था। मिसाल को इस बच्ची से हमदर्दी महसूस हुई। हशाम को इसकी कहानी सुनने में दिलचस्पी थी, इसीलिए एक दिन उसने मिसाल से पूछ ही लिया, आपकी फैमिली में कोई नहीं है क्या? इन्हें यूँ खुद को आप जनाब कहते देखकर मिसाल ने कहा, हाँ मुझसे बड़े हैं तो आप मुझे तुम कहकर पुकार सकते हैं। ओके। हशाम मालिक मुस्कुराया। ओके, तो मैं पूछ रहा था कि क्या तुम्हारी फैमिली में कोई नहीं है? नहीं, मैं अकेली हूँ। अल्लाह ताला के सिवा मेरा इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। मिसाल अपने हाथों की लकीरों पर उंगली फेरते बोली। हशाम मालिक बड़ी हिम्मत करते गोया हुआ, तो मुझे बता सकती हो जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ। आई प्रॉमिस मैं किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगा। मुझ पर तुम भरोसा कर सकती हो। मैंने भी तुम पर यकीन करके तुम्हें अपनी कहानी सुनाई है। तुम भी मुझे अपना दोस्त समझकर सब कुछ शेयर कर सकती हो। और बेवकूफ़ मिसाल एक बार फिर से किसी पर अंधा एतमाद करती अपनी पूरी कहानी सुना डाली। पूरी कहानी सुनाने के बाद मिसाल अपने जज्बात पर काबू न रख पाती और रो पड़ी थी, और सामने बैठा हशाम मालिक ने हैरत से उसे देखा था। इस लड़की ने बहुत सी छोटी उम्र में इतनी तकलीफें झेली थी। उसने अपनी इज्जत बचाने की खातिर अपनी जान देनी चाहिए। उसे सच में इसके साथ हमदर्दी महसूस हुई। तुम प्लीज़ रो मत। जब तक चाहो हमारे साथ रह सकती हो। मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। इस तरह तुम्हारी वजह से मेरी बेटी को कंपनी भी मिल जाया करेगी। मैं जब भी बिज़नेस के सिलसिले में बाहर होता हूँ तो हर वक्त कोमल की तरफ से परेशान रहता हूँ, और मुझे किसी पर भरोसा भी नहीं है। अगर तुम मेरे घर पर मेरी बेटी के साथ रहोगी तो मैं मुतमईन होऊंगा कि कोई तो है उसके पास। मिसाल उस शख्स को देखने लगी जो इस पर भरोसा कर रहा था, उसे अपने जान से प्यारी बेटी की हिफाजत की जिम्मेदारी सौंप कर। मिसाल को हशाम मालिक की ऑफर को कबूल करना पड़ा था। वो उसके घर में रह सकती थी, लेकिन इस शर्त पर कि उसे इसकी बेटी का ख्याल रखेगी, और मिसाल को यह मंजूर था, क्योंकि इसके सिवा इसके पास कोई और चारा नहीं था। क्योंकि अगर वो यहाँ से बाहर निकलती तो आकिब रिजवी और मैनेजर आरिफ जैसे खुले बिड़िए इसे नोच खाने के मुंतज़िर थे।
दूसरे दिन मिसाल हशाम मालिक के साथ इसके शानदार महलनुमा घर में आ गई। हशाम ने इसके लिए ख़ास कमरा तैयार करवाया था जहाँ हर आसाइश मौजूद थी। मिसाल की ज़रूरत के लिए उन्होंने एक मुलाजमा को हर वक्त दरवाजे के पास चौकस खड़ी रहने का हुक्म दिया कि अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो फ़ौरन से पेशतर इसके पास पहुँच जानी चाहिए। उसे यहाँ कोई भी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। मिसाल के यहाँ पर आने से कोमल बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। वो हर रोज़ इसके पास आकर बैठती और घंटों इसके साथ बातें करती रहती। लेकिन आज कोमल इसके पास नहीं आई थी, जिसकी वजह से मिसाल को परेशानी भी हुई। इससे पहले कि वो किसी से पूछते हशाम वाले खुद इसके रूम में दस्तक देकर चले आए। वो उसे पूछने आए थे कि उसे कोई यहाँ पर मसला या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। नहीं, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हशाम मालिक जाने लगे तो मिसाल ने पूछ लिया, आज कोमल नहीं आई, मैं कब से इसका वेट कर रही हूँ। इसका सवाल सुनकर हशाम मालिक मुड़े और आहिस्तगी से बोले, इसकी तबीयत रात को फिर से ख़राब हो गई थी। जब भी इसकी तबीयत ख़राब होती है तो उसे संभलने में काफ़ी वक्त लगता है और अभी भी उसने खुद को कमरे में बंद कर रखा है। मिसाल ने देखा था हशाम मालिक बहुत परेशान दिखाई दे रहे थे। अच्छा, अपना ख्याल रखना, रात को मुलाकात होती है। ये कहकर हशाम मालिक वहाँ से निकल गए। मिसाल ने गहरी सांस ली। बाज़ लोगों के पास बहुत कुछ होकर भी कुछ नहीं होता। कई मालदार लोग जिन्हें देखकर हम आहें भरते हैं कि कितने खुश नसीब हैं कि इनके पास सब कुछ है, लेकिन ये सब इसके बरक्स होता है। इन मालदार लोगों के पास अक्सर बेसुकूनी, परेशानी और कई गम होते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास सब कुछ है। कोमल बहुत प्यारी बच्ची थी और मिसाल को इससे मोहब्बत थी और उसने कुछ सोचा उठकर कमरे से निकल आई। वो पहली बार अपने कमरे से बाहर निकली थी। हशाम मालिक का यह महलनुमा घर बहुत ही शानदार था। कोई एक बार यहाँ पर आता तो वापस जाने को दिल न करता। मिसाल ने एक मुलाजमा से कोमल के कमरे का मालूम किया और कमरे की तरफ बढ़ गई। दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो देखा सामने ही खिड़की के पास कोमल गहरी चुप की चादर ओढ़े रोलिंग चेयर पर बैठी बाहर लॉन का खूबसूरत नज़ारा देख रही थी। मिसाल आहिस्तगी से चलती हुई उसके पास आई। मिसाल को देखकर वह आहिस्तगी से बोली, आप यहाँ? हाँ, मैंने सोचा कि आज मेरी फ्रेंड मुझसे मिलने और मेरी खैरियत पूछने नहीं आई तो सोचा कि देख तो आऊँ आखिर हुआ क्या है। आप यहाँ क्यों उदास बैठी हो? मिसाल इसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, बाहर चलो ना, देखो कितना खूबसूरत नज़ारा है। नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा, मैं इधर ही ठीक हूँ। मिसाल इसके सामने घुटनों के पर बैठी और फिर इसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेते प्यार से बोली, क्यों दिल नहीं चाहता? हूँ बस ऐसे ही। मुझे मालूम है कि आपकी इस उदासी के पीछे क्या वजह है। क्या वजह है? कोमल ने उल्टा सवाल किया। मुझे आपके पापा ने सब कुछ बता दिया। देखो बेटा, ज़िंदगी ऐसे नहीं गुजारी जाती। किसी के मर जाने से हम थोड़ी ना खुद को भी इनके पीछे मार डालें। हम जिंदा हैं, हमें जीना पड़ेगा अपने प्यारों के लिए जो हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, जैसा कि आपके पापा आपसे। इस दुनिया में सिर्फ आपने अपनी मामा को नहीं खोया, बल्कि बहुत लोगों ने अपनी मामा को खोया। मैंने खोई है अपनी मामा। देखो मुझे, क्या मैं आपको उदास नज़र आती हूँ? नहीं ना। आपको तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि आपके पास पापा है और वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे देखो, मेरे पास तो कोई भी नहीं है, ना मामा, ना पापा और ना ही कोई फैमिली। फिर भी देखो मैं कितनी खुश हूँ। अल्लाह ताला को नाशुक्र इंसान बिल्कुल भी पसंद नहीं, और जो नाशुक्री करते हैं अल्लाह ताला इनसे वो सब भी छीन लेते हैं जो इनके पास होता है। आपके पास अल्लाह ताला का दिया सब कुछ है। आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से एंजॉय करो। अपने दोस्तों के साथ खेलो कूदो और मज़े करो, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं। लेकिन मेरा तो कोई दोस्त ही नहीं है, कोमल उदासी से बोली। अच्छा तो कोई बात नहीं, आज से हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, ओके? मिसाल ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया जिसे कोमल ने झट से थाम लिया। ओके। कोमल खुश हो गई थी। ओके, तो फिर निकलो इस अंधेरे कमरे से और चलो मेरे साथ बाहर। आज हम खेलेंगे और बहुत सारा एंजॉय करेंगे, ओके? चलो आओ। मिसाल इसका हाथ पकड़े बाहर ले आई। अब वो दोनों हंसती हुई लॉन में फुटबॉल खेल रही थी। मुलाजिम हैरानी से इन दोनों को देख रहे थे। ये पहली बार था कि कोमल आज इतनी खुश थी। हशाम मालिक ऑफिस से जल्दी ही घर आ गया था क्योंकि वो कोमल की तरफ से बहुत परेशान और फिक्रमंद था। जब वो कोमल के कमरे में दाखिल हुआ तो उसे कोमल कहीं पर भी ना दिखाई दी। वो परेशान हो गया था। ढूंढते हुए जब इसे लॉन से किसी की हंसने की आवाज़ें सुनाई दी तो वो वहीं चला आया, लेकिन सामने का मंजर उसे ठटकने पर मजबूर कर गया। मिसाल कोमल फुटबॉल खेल रही थी। फुटबॉल को किक लगाती खिलखिलाकर हंसती कोमल को देखकर हशाम मालिक की आंखें आंसुओं से भर गई। 10 साल बाद आज पहली बार वो कोमल को यूं नॉर्मल बच्चों की तरह खेलते और हंसते हुए देख रहा था। वो इस मंजर को जितना देख रहा था, दिल था कि इसे बस देखते ही रहने को चाहता। हशाम मालिक ने यूं एंजॉय करते देखकर मुस्कुराते हुए फ्रेश होने अपने कमरे में चलाया। मुलाजमा खाना लगा चुकी थी और अब इन दोनों को बुलाने आई थी। बीबी जी, हशाम साहब आ गए, आप लोग भी खाने की मेज़ पर आ जाएं। खाना मैंने लगा दिया। अच्छा ठीक है।
चलो ठीक है बेटा, आपके पापा आ गए हैं। आप पहले अपने पापा से मिलो, फिर हम खाना खाएंगे और वापस आकर बाकी की गेम यहीं से स्टार्ट करेंगे। ओके, मैं पापा से अभी मिलकर आती हूँ। ये कहकर कोमल अपने पापा के कमरे की तरफ भाग गई। पापा, कोमल धड़ से दरवाज़ा खोलती अंदर भागी चली आई। हशाम मालिक अभी फ्रेश होकर सोफे पर आकर बैठे थे। सफ़ेद शर्ट जिसके दोनों बाजू फोल्ड कर रखे थे, वो लैपटॉप खोले एक ज़रूरी मेल कर रहा था। तभी कोमल भागकर कमरे में आई। उसे देखकर हशाम मालिक मुस्कुरा उठा। अपना लैपटॉप बंद करके टेबल पर रखते हुए उसे देखकर बोला, पापा की जान, ये आज कैसे आना हुआ मेरे रूम में? पहले तो कभी भी नहीं आई, हमेशा मैं ही आता था। कोमल बाप के गले में बाहें डाले प्यार से बोली, मुझे मिसाल आंटी ने कहा था कि आपसे मिला। अच्छा? हशाम को हैरानी हुई थी। मेरी तो आपने कभी भी कोई बात नहीं मानी, फिर आंटी की बात कैसे माननी? क्योंकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। उन्होंने मुझे समझाया कि मामा के जाने के बाद मैं उदास बिल्कुल भी ना हूँ, क्योंकि किसी मरने से हम थोड़ी ना मर जाते, और तो और मेरे में सिर्फ मामा नहीं है, लेकिन आंटी के पास तो इनका कोई भी नहीं है। इसलिए मुझे समझ आ गई कि वो क्या कह रही हैं। और पापा, मैं आज से आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगी, और मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू सो मच पापा। ये कहकर कोमल ने मोहब्बत से अपने गाल पर बाप के गाल पर बूसा दिया। हशाम मालिक ने इसे भेजकर सीने से लगाया। उसे बहुत खुशी हो रही थी कि इसकी बेटी अब बदलने लगी है। वो जो 10 साल तक ना कर सकता था, वो 10 दिनों में मिसाल ने कर दिखाया था। इसकी बेटी अब खुद को बदलने लगी थी और ये सब मिसाल की वजह से मुमकिन हो रहा था। उसे अपने इस फैसले पर बहुत खुशी हुई थी। इसने जो फैसला लिया था मिसाल को अपने घर में रखने का, वो फैसला सूदमंद साबित हुआ था। मिसाल पूरी ईमानदारी के साथ इसकी बेटी का ख्याल रख रही थी, और पहली बार हशाम मालिक को अपनी बीवी के बाद कोई औरत अच्छी लगी थी। पापा चलें खाना खाने, आंटी हमारा वेट कर रही हैं। हाँ चलो बेटा। हशाम मालिक इसका हाथ पकड़े डाइनिंग टेबल पर चले आए, जहाँ पर मिसाल पहले से बैठी इनका ही इंतज़ार कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम। हशाम मालिक मिसाल को सलाम करते हुए कुर्सी खींचकर बैठ गए। वालेकुम सलाम। मिसाल ने जवाब दिया। अपने साथ वाली कुर्सी खींचकर कोमल को उसे वहाँ बिठाया। चलो अब खाना शुरू करते हैं, हशाम मालिक ने कहा और खाना शुरू कर दिया। उसने दिखाया। मिसाल अपने हाथों से नवाले बना बनाकर कोमल के मुंह में डाल रही थी, और कोमल नखरे करती तो मिसाल इसे डांट कर दूसरा नवाला इसके मुंह में डाल देती। और ये मंजर हशाम मालिक को इतना अच्छा लगा कि दिल ने बेख्तियार ये ख्वाहिश की कि उसे ये मंजर हर रोज़ देखना पड़े।